Ladies and gentlemen, we're ready to go. Komal, we are all set. I will take care of admitting people. We all welcome you in today's session. Thank you very much for joining today's session, Basics of Stock Trading. This is Komal Malik, and I am the moderator of this session today. I have Mr. Faisal Jamil with me as my co-moderator, and Ms. Zainab Hassan as our team member, being our support here. Before proceeding further, I would like to briefly explain the idea of digital domestics. This idea was given by Mr. Bilal Haider, a columnist, journalist, communication consultant, and a lecturer in University of Erfurt in Germany. Digital domestic idea ये है कि if you have some kind of skills, some knowledge और inspirational journeys जो आप समझते हैं कि दूसरों के साथ शेयर की जा सकती हैं, या आपके पास किसी भी किस्म की रिमोट जॉब्स हैं जो आप दूसरों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं, या आप अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है. Feel free to contact with us and make it beneficial for others too, and we will improvise with the passage of time, inshallah. इस सेशन के हवाले से हम आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर और एक छोटी सी वार्निंग भी हमने पोस्ट की थी, उसी को मैं दोबारा से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि दिस सेशन इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. It is to develop a basic understanding about the topic, and it should not be considered as a substitute of some professional advice of a financial advisor. And further, you all know कि इसमें किस किस्म के risks involved हैं और huge chances of loss are also involved in this. लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि इस बेसिक इंफॉर्मेशनल सेशन से आप लोगों को फ़ायदा होगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप इसमें एडवांस लेवल पे भी आगे जानना चाहेंगे. तो आप सबकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर, एंड please help me to welcome my co-moderator, Mr. Faisal Jamil, to further proceed, to introduce himself, to brief little about the basic ground rules to attend this session, and also to introduce our facilitator today. So, over to you, Mr. Faisal. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, everyone, wherever you are logged in. We are again here with another amazing topic, which is stock trading. I'm one of your moderators for this session. My name is Faisal, and we will help you throughout the session. Before we start, there are some ground rules which I would like to display on the screen. It's very important for everyone to please keep your mics mute throughout the session. Right now, the mics you can unmute, but if you are unmuted yourself and it's a disturbance during the session, and if one of the moderator will mute you, you would not be able to unmute yourself, and you have to ask for unmute if it's required when question answer session will begin. Keep your camera off until you are asked during the question answer session. During the session, which would be presented by Abdul Fahim brother, that time you can raise your hand. There is an option in more, or also if you go to participant, you can find the raise hand option. During the session, if you have any question, you can ask that question. Chat box would be completely disabled. You will not find the box where you can chat, because we want you to concentrate on the session only. We will have 15 minutes of question answer session, end of the session. The session itself would be 1 hour. And during the question answer session, again, we will use the same technique. You can raise your hand and we can get you on the camera and unmute yourself, and you can ask the question from the presenter. Without any further ado, let me introduce our presenter today. Well, learn the basics of stock trading. We have our presenter. He has been living in Germany for 10 years now. He has earned a master in engineering from Germany, an MBA from IE Business School, Spain. He has diverse experience of technology and management.
Well, Mr. Fahim, he is also very passionate about stock trading and cryptocurrency. He's very humble and always willing to helping others. Well, our session would be bilingual, उर्दू और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो कि उर्दू या इंग्लिश दोनों में से ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा होगा, so you can raise your hand, you can just tell us if we can go ahead with the English only, or if there are some people they understand only English, then we can incorporate accordingly. So with the round of applause, help me welcome to hand over to Abdul Fahim. Over to you, Brother Abdul Fahim. Assalamu alaikum to all. Great. Firstly, thanks to the Digital Domestic and the team for managing this session and giving me this opportunity to share my little bit knowledge with you. So without any further discussion, let me share my screen. Okay, let me switch to Urdu. I hope everybody can understand Urdu. It's our mother language, so it makes sense to do in Urdu. So what we are going to learn today is basics of stock. We are only discussing about share market. We are not discussing cryptocurrency, EFTs, bonds. There are many opportunities, but today we have a focus only of basics of stock trading like shares. So what we will cover, we will introduce a little bit about stock. कि stock होता क्या है, ठीक है जी, shares क्या है. उसके बाद as investors like you guys or anyone, what they expect, why they want to invest in the stock, right? फिर हम कुछ की प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर वो इस मार्केट में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, क्या रिस्क हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. फिर हमारा जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा की इंडिकेटर्स, कि कौन सी इंडिकेटर्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं जब आप स्टॉक बाय करना चाहें किसी भी कंपनी का या किसी भी कंट्री का या किसी भी मार्केट का. तो वो थोड़े से की इंडिकेटर्स हम बेसिकली देखेंगे. फिर हम डाइवर्स इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी. फिर एट द एंड हम ये स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ स्टार्टर, एज अ बिगनर, राइट. फिर क्वेश्चन आंसर होगा और इससे पहले हाउ एंड वे टू स्टार्ट, यहाँ पे हम आपको कुछ हैंड्स ऑन ट्रेडिंग भी दिखाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी. तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक. स्टॉक होता क्या है? बेसिकली जब भी कोई कंपनी होती है स्टार्ट से, तो स्टार्ट ही होती है एक लोग या दो लोग एक कंपनी बनाते हैं प्राइवेटली, ठीक है. तो जब वो कंपनी ज़्यादा बिजनेस करती है, वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है. तो जब कंपनी ग्रो करती है तो उनको पैसों की भी जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है. तो उनके पास दो ऑप्शन होती हैं, वो बैंक के पास चले जाएं, ठीक है, वो जाते हैं बैंक के पास डेफिनेटली, लेकिन बैंक से उनको एक लिमिटेड लोन देगा, उनको बहुत ज़्यादा लोन नहीं देता. फिर जब, और दूसरी बात, बैंक से आप लोन लेंगे तो आपके ऊपर हमेशा एक लाइबिलिटी होती है, फिक्स इंटरेस्ट आपने पे करना होता है, ठीक है. Someone is waiting in the, I admit it, okay. You just go ahead. We will take care of people who Okay. are coming in. Okay. Okay. तो होता ही है कि फिर कंपनी जो होती है ना वो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जाती हैं अपना फाइनेंस लेने के लिए, ठीक है जी. आईपीओ क्या होते हैं? एक कंपनी कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, हम ये कर रहे हैं और हमारे ये ग्रोथ फ्यूचर में ये हमारा पोटेंशियल है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम अमेजोन ले लेते हैं, ठीक है जी. 1995 या 6 में स्टार्ट हुई, ठीक है जी. कंपनी ग्रो किया, उसका बिजनेस ग्रो किया, फिर वो मार्केट में आते हैं और अपने एक आईपीओ अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट में, कहते हैं कि ये हमारे शेयर्स हैं, हम खरीदें, ठीक है जी. तो वो ब्रोकर्स के पास चले जाते हैं और हम शेयर्स खरीदते हैं. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है. स्टार्ट में हो सकता है 10 यूरो का या $10 का शेयर हो या 1 यूरो का भी होता है, डिपेंड्स. ये एक पूरा एक चैप्टर आईपीओ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, लेकिन आपके लिए जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि आईपीओ होते क्या है, ठीक है जी. कंपनी जब पब्लिक जाती है तो उसके डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनका मेजर शेयर्स होता है उनकी मार्केट में, ठीक है जी. तो स्टॉक और शेयर्स मिलती जुलती टर्म्स हैं. जब कलेक्टिव ऑफ शेयर्स होते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है जी. तो डोंट कंफ्यूज, शेयर एंड स्टॉक इज काइंड ऑफ सिमिलर टर्मिनोलॉजी, राइट. अच्छा जी.
अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो कंपनी से ऑथराइज्ड होते हैं और वो मार्केट में इशू करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है जी। अब उनका क्या होता है कि जिन लोगों के पास भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, ओके देयर इज अ लिमिट, अगर मेरे पास एक शेयर है तो मेरे पास वो राइट्स नहीं होगा वोटिंग का, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं कि वो वोटिंग के लिए राइट्स होते हैं। वोटिंग की है किस चीज़ की? फॉर एग्जांपल कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहती है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनवाइट करेगी जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो फिर जो भी आपके शेयर होल्डर होते हैं वो उसके डिसीजन में वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो वन मैन शो नहीं रहा, वो कंपनी पब्लिक हो गई है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स हैं और वो उसके डिसीजन में उसके इक्वली राइट्स रखते हैं, ठीक है। जब तक कंपनी प्राइवेट रहती है, फैमिली बिजनेस भी होते हैं, तो उसमें उन पे मतलब दे हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, दे हैव नो रिस्पॉन्स, वो किसी के जवाब दे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पब्लिक जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और वो उसको लीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं ट्रेडी स्टॉक्स। वो क्या होते हैं? समटाइम कंपनी ये कहती है कि मार्केट में जब आप उसने शेयर्स सेल कर दिए आपके, तो वो बाय बैक भी कर सकती हैं शेयर्स, मतलब मार्केट से खुद ही परचेज कर लेती हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। समटाइम्स कंपनियां अपनी शेयर मार्केट, फॉर एग्जांपल इफ दे बाय बैक व्हाट हैपेंस कि उनके मार्केट शेयर में कम हो जाएंगे, तो प्राइस की वेरिएशन करने के लिए भी, प्राइस कंट्रोल करने के लिए भी समटाइम बाय बैक कर लेते हैं। समटाइम ये भी होता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, ठीक है, और उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं, उस कैश को तो यूजलेस है, तो वो अपने स्टॉक या शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वो कंपनी के पास वापस चले जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग स्टॉक होता है वो एलिजिबल नहीं होता डिविडेंड का, और ना ही उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो समझ लें कि कंपनी के पास वापस चले गए, जो उन्होंने पहले मार्केट में पैसे उठाए थे वो वापस चले गए। अच्छा जी। अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक? Any idea? Anyone want to share why somebody need to invest in stock? I'm free. Anybody can unmute and can participate, can tell why to invest in stock, why they are here. Any idea? Anybody? Be brave, no worries. Unmute your mic or raise your hand. जी जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ here। वालेकुम सलाम। जी जी। जी, काफी इसमें सबसे जो मेन गोल हो सकता है वो तो यही हो सकता है कि आपकी अगर आपके पास वेल्थ है तो आप उसको कहीं ना कहीं यूजफुल उसको लगाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, ताकि मे बी इन रिटर्न आप उसमें से कुछ कमा सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट गोल। सेकंड गोल डिपेंड्स के आपकी मोटिवेशन कितनी है। कुछ लोग किसी कंपनी को या किसी फ्यूचर बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो उस पर बिलीव करते हैं कि मे बी इट्स द फ्यूचर, तो उसके लिए वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली परफेक्टली, बहुत अच्छा काशिफ साहब ने पार्टिसिपेट किया कि एग्जैक्टली फर्स्ट गोल तो ये होता है बेसिकली कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप अपने पैसे बैंक में रख के भी कमा सकते हैं इंटरेस्ट, या समथिंग बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा होता है कि उसमें आपकी प्रॉफिट रेशियो उतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, कुछ लोग इसलिए भी स्टॉक में आते हैं कि कुछ लोग इसको एज अ प्रोफेशनल भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। दे लर्न स्लोली, और फ्यूचर में वो समझते हैं कि अगर वो खुद पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ लर्न करेंगे, तो फ्यूचर में मे भी वो एक ब्रोकर बन जाए या अपना एज अ प्रोफेशनल कैरियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी चार्मिंग बट वेरी हार्ड। बट द आंसर वाज रियली गुड। सो यहाँ पे हमारा एक पोल है कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं जब आप एक स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट करते हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसल भाई से कि एक पोल स्टार्ट करें हमारा, तो उसमें हम आपकी राय लेंगे, ऑप्शंस हैं, तो आप फ्रीली टू चूज वट I एवर यू would, थिंक। yeah, I would just request to please stop the share. I will launch the poll. ओके। ओके जी। 1 मिनट में पोल आपकी स्क्रीन पर होगा और आप लोग पार्टिसिपेट करके उसको सबमिट कर सकते हैं. यू कैन चूज वन from the given options and poll would be in few seconds on your screen. Here we go.
All right, Mr. Fahim, almost everybody has voted because we are hosts. We cannot vote, we cannot participate. So all done. Mhm. I will show the results. I will end the poll and show the results. Yeah, sure. जी बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा जी हमें सबसे ज़्यादा लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है बिटवीन 10 to 25 वेरी रियलिस्टिक कुछ लोग अप टू 10% भी कह रहे हैं और बहुत सारे थोड़े से लोग हैं जो बिटवीन 26 to 50% पर ईयर प्रॉफिट और कुछ लोग 23% 50 प्लस भी जा रहे हैं दैट्स वेरी एम्बिशियस पीपल आर हियर इसका कोई भी वाइट और ब्लैक आंसर नहीं है इट्स अ ग्रे एरिया एवरीथिंग इज पॉसिबल इट डिपेंड्स हाउ यू डू ठीक है जी जो लोग समझते हैं कि up to 10% they are good enough okay they can invest in a secure companies or stable companies that's all right और जो लोग समझते हैं कि हमें more than 50% they want to earn it's also possible but they have to take more risks right they have to invest in the companies those are very grooming or they have more potential not a very big stable companies but maybe some new companies so yeah everything is possible but it's good to know like people have like diverse opinion okay हम इसको कर सकते हैं जी स्टॉप और वापस हम अपनी उस जी पे जा आप सकते हैं जी दोबारा शेयर कर सकते हैं स्क्रीन. जी जी ठीक देख सकते हैं मेरी स्क्रीन जी वापस Yes, that's visible. okay we are done with the polls okay so low risk is it possible that's a question for example people ask it's risky अगर आप अपने पैसे बैंक में रख देते हैं तो they are secure but you will get a less interest right or if you buy a bond or anything else maybe property whatever so is it possible answer is yes it is possible but then you should expect lower profit higher that is higher the profit right एक और चीज why the people want to invest here because liquidity it's immediate cash for example अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया ओके बैंक में भी आपके पास लिक्विडिटी फास्ट होती है लेकिन इसका स्टॉक मार्केट में भी ये है कि अगर आप immediately want to sell you can sell immediately and you get your money back right of course you need to consider tax जहां तक बात जर्मनी की है तो जर्मनी में ऑलमोस्ट यू हैव टू पे 26 पॉइंट समथिंग टैक्स किस चीज पे जो आप उस पर प्रॉफिट कमाएंगे हम इस पे डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है डिविडेंड क्या होते हैं और कैपिटल गेन क्या होता है लेकिन ओवरऑल जो आप उस पे अर्न करते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है 800 यूरोस फ्री है पर पर्सन और 1600 यूरो अगर आप मैरिड हैं फैमिली वाले हैं तो उसके लिए उस पर टैक्स नहीं है ठीक है जी की प्रिकॉशंस जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है मार्केट में आने के जो ऑलरेडी कर रहे हैं दे मस्ट हैव आइडिया लेकिन जो लोग नए हैं इस मार्केट में उनको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए इस इन्वेस्टिंग इन रिस्की ऑफ कोर्स इट्स रिस्की दूसरी बात डोंट ट्राई टू बी अ क्विक विन अगर आप स्टार्ट में आए हैं तो डू नॉट पुट योर ऑल मनी इन स्टॉक मार्केट और ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे तो आई वुड से लर्न स्लोली and steady but at some time you would be able to win a good money then who should invest और कौन कौन बंदा है जो कि इन्वेस्ट कर सकता है एटलीस्ट अगर हम जर्मनी में जर्मन मार्केट की बात करें या जो लोग जर्मनी में हैं तो उनमें से हर बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है लेकिन उसके पास लीगल स्टे होना चाहिए डेफिनेटली उसके पास टैक्स नंबर होना चाहिए ठीक है जी ये दो हैं ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट हर बंदे के पास होता है तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये जॉब नहीं है ये आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है इट्स अल्टरनेटिव टू योर बैंक आपके पास पैसे हैं आप बैंक में रख के भी कमा सकते हैं अदरवाइज आप स्टॉक में कर सकते हैं ठीक है जी सबसे बड़ी बात इन्वेस्ट योर ओन मनी किसी से कभी भी बैंक से लोन लेके या किसी से लोन लेके कभी इन्वेस्ट ना करें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं स्पेशली पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट मार्केट में जाते हैं वो कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो समझते हैं कि दे आर गुड वन तो वो लोगों से या अपने रिलेटिव से या बैंक से लोन लेके तो इन्वेस्ट कर क्योंकि वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जर्मन मार्केट में इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 3 to 4% और अगर आप ये समझते हैं कि यू कैन प्रोड्यूस लाइक 10 to 15% per year तो लोग ये समझते हैं okay we take a loan from the bank with 3 to 4% per year and we can generate the money like between 15 to 20% or maybe more but I would never suggest it because it's risky so
प्लीज ओनली इन्वेस्ट योर ओन मनी, एटलीस्ट इन स्टार्ट, एटलीस्ट इन स्टार्ट 1-2 years। पर मैं किसी के पैसों पे कभी भी नहीं कहूँगा, मार्केट में हमेशा कम विद योर ओन मनी, राइट। अब अपनी मनी भी कौन सी, ओनली स्पेयर मनी, जहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हों। मतलब ये नहीं कि अगर आपको 6 महीने में या 3 महीने में वो मनी बैक चाहिए तो यू वांट टू अर्न अ क्विक मनी, डोंट डू दैट। आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आप समझते हैं कि आप 2-3 साल या 5 साल, मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ वो स्पेयर मनी इन्वेस्ट करें। उसका फायदा ये होगा कि जैसा कि अभी आपने पीछे देखा, पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गई, ऑलमोस्ट 40% जनरल मार्केट नीचे गई, ठीक है। और अगर आप किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया हो कि या किसी के देने हो या उसको कोई लाइबिलिटी हो अगले 2-3 माह में, तो उसको फिर उस सूरत में बेचने पड़ेंगे नहीं हाउ, तो वो फिर लॉस में बेचेगा, ठीक है। इसलिए सबसे क्रूशियल है कि इन्वेस्ट योर स्पेयर मनी, और फिर आप थोड़ा सा जैसे भी हैं आपने एक्टिव इन्वेस्टर काम करना है, पैसिव बट प्ले विद योर स्पेयर मनी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो पैसे हैं उसको डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। आप स्टॉक में खरीदें, फिर ईएफटीज होते हैं, हम ईएफटीज हमारा चैप्टर नहीं है आज का, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टमेंट की टर्म है, ठीक है जी। बॉन्ड्स खरीद सकते हैं आप, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक फॉरेन क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हैं, यानी कि पाउंड यूरोज व्हाटएवर, ठीक है जी। तो डाइवर्सिफाई करें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 यूरो है तो आई वुड से डाइवर्सिफाई समहाउ, ठीक है। डू नॉट पुट ऑल द मनी इन स्टॉक। और सबसे की फैक्टर होता है इमोशनल कंट्रोल। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो होता ही है कि जब आप मार्केट को देखते हैं, लर्न करते हैं, तो सम टाइम वी गेट इमोशनल। वो कैसे, दोनों तरफ। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो अगर फॉल हो रहा है या मतलब वो इज गोइंग वीक, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें लॉस हो चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है, 10% में भी 15%, तो हम उस पैनिक कंडीशन में उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो यू विल सी दे रिकवर मे बी आफ्टर 10 days और नेक्स्ट डे, ठीक है। अदर वे अराउंड, अगर किसी मार्केट का या प्रॉफिट ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं ओ दिस कंपनी इज डूइंग वेल, तो हम बाय कर लेते हैं, बट वी बाय एट द पीक। हम ऑलरेडी वहां पे बाय करते हैं जहाँ पे वो पीक पे चला गया होता है, ठीक है। तो जब हम बाय करते हैं तो मे बी उसकी अब वापसी की थोड़ी सी बारी हो तो वापस भी आ सकता है। तो ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस। हमेशा कंसीडर करें व्हाट एवर इज गोइंग, स्पेशली क्रिप्टो की मैं बात करूँ, क्रिप्टो में तो बहुत ज्यादा है इमोशन कंट्रोल का, क्योंकि वहां तो एक दिन में 100% भी आपकी मनी ऊपर या नीचे जा सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली बेटर है क्रिप्टो से, उतनी वोलेटाइल नहीं है जितनी की क्रिप्टो है। तो ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस, और जो भी आपने डिसीजन लेना है वो स्टैटिस्टिक्स और रियलिस्टिक बेस पे लेना है रादर देन इमोशंस पे, या किसी ठीक है अगर कोई कहता भी है तो इट्स ऑलराइट, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, राइट। की इंडिकेटर्स, अब की इंडिकेटर्स ये हैं कि हमने मार्केट में जब कोई शेयर्स खरीदने हैं तो हमें कौन सी बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए हमें किसी कॉर्पोरेशन के बारे में कि वो क्या कर रही है, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप, यानी कि उस कंपनी का साइज क्या है, ठीक है जी। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में गो थ्रू करेंगे, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे नेट इनकम क्या होती है, बीटा क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है, और प्राइस टू अर्निंग पर शेयर रेशो क्या होती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। फिर डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी डिविडेंड क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये भी रिलेटिव टू डिविडेंड ही होता है। फिर एट एंड कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है जी। फिर हम मार्केट मोमेंटम को भी देखेंगे, ये भी की इंडिकेटर होता है कि मार्केट कैसे जा रही है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या इम्पैक्ट करती है मार्केट में, ठीक है जी। सबसे पहले मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप ये होता है, जैसे हमने पीछे देखा कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें उनकी करंट मार्केट वैल्यू के साथ, तो वो आपका टोटल जो होता है ना वो मार्केट कैप होता है। इसका मतलब है कि आपकी कॉर्पोरेशन के पास कितने पैसे हैं या उसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, ठीक है, उसकी वर्थ कितनी है। तो जो लार्ज कॉर्पोरेशन हैं उनका मार्केट कैप कंसिडर किया जाता है जो ग्रेटर देन 10 बिलियन हो। अब जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं या सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनमें आप अमेजोन, डेफिनेटली एवरीबॉडी नोस, उसकी जो मार्केट कैप है 1.2 बिलियन है। इसी तरह अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसका जो मार्केट कैप है 1.39 ट्रिलियन है, मतलब दो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मीडियम कॉर्पोरेशंस कुछ होती हैं जिनका मार्केट कैप 2 बिलियन और 10 बिलियन के दरमियान में होता है जी, ठीक है जी। इसी तरह कुछ स्मॉल कॉर्पोरेशंस होती हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो बिटवीन 300 मिलियन एंड 2 बिलियन कंसिडर किया जाता है,
ठीक है जी। अच्छा, मार्केट कैप इसलिए जरूरी है कि जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है जी। और लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, अब इसके शेयर्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं आती, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह स्मॉल कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो ज़्यादा रिस्की होती हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें प्रॉफिट लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेट इनकम क्या होती है। अच्छा जी, नेट के इनकम होती बेसिकली ये है, मैं अपना माउस ला के तो कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने एक एग्जांपल ली है अमेजोन की, पिछले 2017, 18, 19 और T2M का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ के, पिछले 12 मंथ में उन्होंने क्या बिजनेस किया है। पिछले 12 मंथ का मतलब है कि ये जून है, तो पिछले जून से लेके पिछले मई तक, पिछले 12 मंथ में उनकी क्या प्रोग्रेस रही। सॉरी, अच्छा जी, नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली होता है कि ये आपके टोटल रेवेन्यूज है, मतलब आपने जितना बिजनेस किया है वो ये है। अब ये थाउजेंड्स में है तो ये है 296 बिलियन का बिजनेस उन्होंने किया, या उनकी, आप ये कह लीजिए उनकी सेल है या इनकम है, व्हाटएवर आप कहें इसको, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं उसमें से हम देखते हैं जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, कि उसके अखराजात कितने आए हैं, उनकी सैलरीज हैं, उनके ट्रांसपोर्ट है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, रेंट है, ठीक है, वो उनकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज होते हैं। तो अगर हम उनके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज में से उनके टोटल रेवेन्यू माइनस कर दें, टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है जी। ये 77 बिलियन था उनका। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जी, उसमें आ जाते हैं जी आपके R&D है, आपके सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये भी जब हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 63 बिलियन, इसका मतलब है कि जो उन्होंने ऑपरेशन से अर्न किया है, ठीक है जी, 63 बिलियन। अच्छा, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाते हैं उसके बाद हम उसमें से ये देखते हैं कि आपका, सॉरी मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके एक्सपेंस होते हैं, और जो आपका ऑपरेटिंग इनकम और लॉस होता है वो बेसिकली होता है कि आपके रेवेन्यूज माइनस आपके जितने भी एक्सपेंस है ना, ये निकाल दें तो आपका ऑपरेटिंग इनकम या लॉस आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब आपका ये ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है तो इसमें से आपने इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट किसको देना है? जो आपने बैंक से लोन लिया होता है। डेफिनेटली कोई भी कंपनी होती है वो सारा 100% उसके पास स्टॉक का कैपेक्स नहीं होता, उसके पास कुछ बैंक के लोन्स भी होते हैं, उसने उसके इंटरेस्ट देने होते हैं, ठीक है जी। जब ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद आपने टैक्स देने हैं, इनकम एक्सपेंस हैं, मतलब ये सारी एक्सपेंस की टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो जब ये सारे माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। ये होती है आपकी एट द एंड जो आपका विन वैल्यू होती है, कि आपने कितने प्रॉफिट या कितना पैसा आपने नेट सेव किया है। और फिर ये मनी जो होती है ना, बेसिकली ये शेयर होल्डर्स की होती है, यानी आपकी मेरी जो भी शेयर होल्डर्स है उसकी मनी होती है, अमाउंट होती है। अच्छा जी, अब आप और करें थोड़ा सा 2017, 18, 19, 20, आपको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप, क्या कोई ऐसा कोई डिफरेंस नजर आ रहा है इनमें से? कोई ऐसी कोई की वैल्यू पिक कर सकते हैं आपके? ओके, फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है, 177 से 232 हो गए हैं, ये रेवेन्यू यहाँ भी 280 हो गए हैं, पिछले लास्ट मंथ में इनके अमेजोन के रेवेन्यूज बढ़ गए हैं, यानी कि ऑफ कोर्स उनकी सेल्स बढ़ रही है हर ईयर, ठीक है जी। तो आपने कोई ऐसी कोई चीज इसमें से, अगर आप एनालिसिस या थोड़ा सा इसमें रखते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा अजीब नजर आया इसमें से, कि कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब एक जैसे फिगर्स नहीं है, कुछ कुछ ऐसा नजर आया? अगर आप देखें नेट इनकम में भी, तो नेट इनकम मतलब ठीक है बढ़ रही है वो भी हर साल, ठीक है जी। अगर आप इनके एक्सपेंस देखें तो वो भी ऑफ कोर्स बढ़े हैं हर साल। तो एनीथिंग सस्पिशियस टू यू इन दिस एज एन इन्वेस्टर? मैं आपको देता हूँ जी, आपको इसमें कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, ये इनकी नेट इनकम है, तो इस साल या पिछले साल में आपको कुछ सस्पिशियस, स्पेशली टीटीएम में, स्पेशली अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है? समथिंग इज नॉट गुड, एनी आइडिया? ओपन फॉर एवरीबॉडी, अगर कुछ भी आपको नजर आ रहा है या आप कुछ एनालिसिस करते हैं दैट सीम्स नॉट गुड, तो यू आर वेलकम टू ओपन योर माइक और रेज योर हैंड एंड पार्टिसिपेट हियर। Abdul Moiz raised his hand. जी 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 मोइज भाई। मुझे जो चीज आउटस्टैंडिंग लग रही है वो 2017 से 2018 की अगर हम फिगर देखते हैं तो नेट इनकम में ज्यादा डिफरेंस है बनस्बत 2018 और 19 की। एग्जैक्टली,
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी। अगर आप परसेंटेज देखें तो यहाँ पे 177 था इनका रेवेन्यू और 2008 में 232 चला गया ऑलमोस्ट। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें, आई रफली वी कैन से 50-60%। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ये भी सस्पिशियस नहीं है, ये पॉजिटिव है कि उनके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा ग्रो किए थे 2017 से 18 के। अच्छा एक और बात, जब भी हम नेट इनकम करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज नहीं लाया, बेसिकली करते ये हैं हम कि हम हमेशा परसेंटेज देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कितने परसेंट बढ़ी और इनके एक्सपेंस यहाँ से यहाँ कितने परसेंट बढ़े। इसी तरह यहाँ से यहाँ हम हमेशा परसेंटेज में देखते हैं, उससे ही एडवांटेज होता है, हमें फिगर ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, कि कितने परसेंट बढ़ी है कोई भी चीज, चाहे उनकी वो रेवेन्यूज है हो या कॉस्ट हो या एक्सपेंस हो या नेट इनकम हो। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत तेज हुई थी और इसीलिए मतलब अमेजोन 2017 से 18 में इनकी, खैर प्राइस तो इनके पिछले साल भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन बट दैट वाज आल्सो गुड ईयर। एनीथिंग एल्स सस्पिशियस और डेब्ट आउटस्टैंडिंग? फाइनेंसिंग ज्यादा कर रहे हैं पॉस जी की निस्बत, डेब्ट फाइनेंसिंग ज्यादा कर रहे हैं ये। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, जिसकी वजह से ये अपनी नेट इनकम को कंट्रोल कर सक रहे हैं। एग्जैक्टली ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस है कि पहले हर साल ये थोड़ा सा बैंक से पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा ये एक नॉर्मल है कि जब कंपनी ग्रो करती है ना, तो वो बैंक के लिए भी ज्यादा रिलायबल हो जाती है, कि बैंक भी उनको राजी होता है कि ठीक है जी आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी कीमत भी बढ़ रही है मार्केट में, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी है, आप और इंटरेस्ट हमसे ले सकते हैं। मैंने जैसे कि वाजिद पहले आपको, जी 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 फरमाइए। कैरियन वाजिद एहसान ने हाथ उठाया, जैसे आप फिनिश करें वाजिद मैंने जो एहसान। चीज़ नोट किया है, जी वाजिद है, जी जी तो मैंने बोले जी। चीज़ नोट किया है कि देखें आप टीटीएम में उसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज किया है, जी और जी जो उसका नेट इनकम है वो डिक्रीज कर रही है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। परफेक्ट, सबसे अच्छा पॉइंट आपने रेस किया जी वाजिद। ये इनका बहुत सस्पिशियस जो चीज नजर आई है वो ये है कि अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो इनके रेवेन्यूज तो ठीक है इंक्रीज किए हैं, 280 से लेके 296 हो गए हैं, लेकिन अगर आप इनकी नेट इनकम देखें तो वो 11 से लेके 10.5 पे आ गई है। मतलब रेवेन्यूज आपके ज्यादा है ट्रेलिंग 12 मंथ में यानी पिछले 12 माह में, लेकिन आपकी नेट इनकम क्यों कम हो रही है? व्हाई? मतलब व्हाई इट शुड इंक्रीज, लाइक हियर यू सी एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। तो ये भी इसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज करनी चाहिए। यहाँ पे अगर 11.5 है इनका, तो यहाँ पे एटलीस्ट 12 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये सबसे सस्पिशियस है। एनी क्लू? ठीक है, Okay, अब मैं so आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों है ऐसा, क्यों, क्या रीजन हो सकती है, बताएं काइंडली। can you hear me? जी जी बिल्कुल। Yeah, so they have invested like 2 billion euros in research and development, which is like purely a kind of capex. So it is also a good sign, even if the income is going down. So it is not a suspicious thing. Yeah, so one thing, and the second thing, the TTM is not like 100% comparable with the 2019, because in case of Amazon, they have the seasonality effect. They have more sales in November and December than uh, August till November. Yeah, so like in this case, it is not a pure comparison between both of these 12 months. Yeah. एग्जैक्टली मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ। अगर हम सेल की बात करें तो से सॉरी अगर हम सेल की बात करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि सीजनल होती है, समर में इनकी सेल ज्यादा होती है। और लेकिन अगर हम इस लिहाज से देखें तो अभी ये पेंडेमिक की वजह से मे भी ये पिछले 3-4 माह में इनकी जनवरी फरवरी मार्च में सेल ज्यादा हुई होगी डेफिनेटली। हम कंपेयर नहीं कर सकते सेल्स को, लेकिन एटलीस्ट हम नेट इनकम को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने, क्योंकि जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो नॉर्मली सीजनल नहीं होते, रेयर चांसेस, वो तो आपके रेगुलर ही होते हैं ना। ठीक है, तो उसमें बहुत कम चांसेस है, कुछ बहुत थोड़े फैक्टर हो सकते हैं आपके। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम सेल को या रेवेन्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम नेट इनकम को जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, कि इनकी नेट इनकम क्यों कम हुई है 12 मंथ में, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनके नेट इनकम कम हो गई है? रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन नेट इनकम कम हो गई है। एनी क्लू और? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी आप में से बोलना चाहे, अगर आप आपका नाम लेके स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा हमें रिकॉग्नाइज जी करना। जी Like mainly अगर आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं 2019 की और TTM की, जी जी I'm only seeing research and development expenses which are like increasing. तो interest का factor भी इसमें मतलब
Very little, only 0.636. It is like increased as compared to the last year. लेकिन ये जो research and development है is like hugely increased by 3 billion, which is quite a big amount. And on the other hand, income is only decreased by $1 billion because of the increase in revenues. So और revenue भी इतना ज़्यादा decrease नहीं हो रहा. It is like इतना ज़्यादा increase नहीं हो रहा. It is just a fraction, 280 to 296. Yeah. ठीक, right. ये भी आपका पॉइंट वैलिड है. ऑफ कोर्स उन्होंने R&D में भी वो, खैर अगर आप देखें तो ये भी कंटिन्यूस है. 22 था, 28 था, 35 था, 37 था, तो ये भी एक कंटिन्यूस. अगर आप हम प्रोपोर्शन देखें ना इसकी सेल्स के प्रोपोर्शन के लिहाज से, तो शायद ये उतना ही निकले. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है परसेंटेज कैलकुलेट करने का कि आप R&D का आपकी, क्योंकि R&D हमेशा जो होती है ना वो आपकी परसेंटेज होती है आपकी रेवेन्यू की. अगर आप इसकी परसेंटेज देखें, मे भी उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, दैट्स कुड बी पॉसिबल. अब मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें वो भी कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मैं आपकी उस बात से भी मुत्फिक करता हूँ, मे भी थोड़ी सी परसेंटेज ये ज्यादा हो. उसके बाद चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ हुआ क्या बेसिकली, कि अभी आपने शायद सुना हो कि पेंडेमिक की वजह से इनको एक्स्ट्रा हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर लेने पड़े हैं अमेज़न को. इनको अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा मास्क, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्स, सैनिटरी इक्विपमेंट और बहुत सारी प्रिकॉशंस करनी पड़ी हैं. ठीक है जी, और इनको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज भी रखने पड़े हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने 4 बिलियन इन्वेस्ट किया था इस हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स में. ठीक है, और अगले क्वार्टर में भी इनकी यही एक स्ट्रेटजी कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें, ठीक है, जो कि होगी. इसका फर्क पड़ा है कुछ पिछले 12 मंथ में. और अब आप अगर इसकी 2-4 माह बाद देखेंगे टीटीएम, तो इसमें आप देखेंगे और डिक्रीज आया. तो उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली खबरें पढ़ी थी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ एंड सेफ्टी पे. तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए. ओके, अब ये एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है. कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पे इन्वेस्ट कर रही है, 4 बिलियन इज अ गुड मनी. ठीक है, तो वो कंपनी मतलब अच्छी है या बुरी है. अब ये दोनों फैक्टर, एक तरफ से अगर आप फिगर्स में देखें तो इट्स नेगेटिव. आप ये 4 बिलियन किसके इन्वेस्टर्स के, ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, तो आप ये देखेंगे कि कंपनी इज डूइंग गुड फॉर देयर एम्प्लॉयज, राइट. तो ये एक बहुत फैक्टर होता है. अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इसके स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया. मैंने जब ये न्यूज आई ना कि इन्होंने 4 बिलियन इन्वेस्ट किया और आगे फ्यूचर में भी करना है हेल्थ एंड सेफ्टी पे, थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में डेफिनेटली आता है. इस न्यूज के बाद इन्वेस्टर जो होते हैं, जो डे ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, जो डे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्विकली क्विट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने मार्जिन कहीं और से लेना है. ठीक है, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, लेकिन वो भी रिकवर कर गया. तो लोग ये सोचते हैं कि इट्स अ गुड कंपनी, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स गुड, वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, राइट. तो ये एक आइडिया था आपको देने का कि आप इन फैक्टर्स पे सोचें कि नेट इनकम क्या होती है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. ठीक है जी, तो हम ज़्यादा टाइम और नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है अगर इस पे हम डिस्कस करें तो. लेकिन आज के लिए इतना ही नेट इनकम पे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है नेट इनकम पे तो इज फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. बीटा, बीटा क्या होता है जी? बीटा ये होता है बेसिकली कि एक मार्केट है ना, वो उसमें चेंज आते हैं. ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है. फॉर एग्जांपल हम एक इंडेक्स पॉइंट लेते हैं मार्केट का, कि एट द स्टार्ट ऑफ 2020 एक कोई भी मार्केट ले लें, डेक्स जर्मन की मार्केट ले लें, डीएक्स. तो अगर उसका लेट्स सपोज उसमें 5% चेंज आया, 5% बढ़ गया मार्केट स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर. ठीक है जी, तो 5% उसका हम कंसिडर कर लेंगे ये बीटा है, और उसको हम वैल्यू दे देंगे 1. ठीक है जी, अब होगा क्या कि कुछ कंपनीज 1 के मुकाबले, कुछ कंपनियां, अब पूरी मार्केट तो इंक्रीज की 5%, लेकिन कुछ कंपनियां इंक्रीज की 10%, कुछ 15%. तो उनकी जो बीटा वैल्यू होगी ना 1 से ज्यादा होगी, 1.2 होगी, 1.3 होगी, 1.4 होगी. और कुछ कंपनियां 5% भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं की. तो वो अगर कुछ कंपनियां 5% से नीचे वॉलेटाइल हुई हैं या चेंज आया, फॉर एग्जांपल 2%, 3%, तो उनका बीटा 1 से नीचे होगा. तो इन अ नटशेल, अगर बीटा 1 है, स्टैंडर्ड है, तो अगर कोई कंपनी का बीटा उससे ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो उस पर रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन उस पर आपको प्रॉफिट अर्न करने का चांस भी ज्यादा है. ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किस किस के इन्वेस्टर हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, मैंने बस थोड़ा मतलब प्रॉफिट लेना है, तो आप हमेशा बीटा को कंसिडर करें. जो
1 के क्लोज हो वहां पे इन्वेस्ट करें, और जो 1 से और कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कहते हैं नो आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क, आई हैव स्पेयर मनी, आई डोंट केयर, तो वो ऐसी कंपनी देखें जिसका बीटा 1 से ज्यादा हो, 1.2 1.3 1.4, तो वो उस पे जाए। ठीक है जी, हायर द बीटा हायर द वॉलेटिलिटी हायर द रिस्क। ठीक है जी। अच्छा जी, बीटा हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम फॉर एग्जांपल अमेजोन का बीटा, अभी हम ऑनलाइन भी जाएंगे, कुछ वैल्यूज जब हम ये गो थ्रू कर लेंगे तो हम देखेंगे भी कुछ कंपनियों के बीटास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन का बीटा आई गेस 1.2 समथिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसका बीटा 0.96 यानी कि 1 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि वो उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। इसी तरह अगर आप टेस्ला की बात करें, टेस्ला शायद आपने डेफिनेटली सुना हो न्यूज में कि उसके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 4-6 माह में, तो उसका बीटा आप देखें तो बहुत ज्यादा हायर होगा। ठीक है जी। या इसी तरह बहुत सारी बीटा एक आपके लिए की वैल्यू है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप किस किस्म के इन्वेस्टर हैं, बीटा जरूर देखें। ठीक है जी। अर्निंग पर शेयर क्या होती है? अर्निंग पर शेयर ये होती है कि आपकी जो कंपनी है ना वो आपके एक शेयर्स के अगेंस्ट कितने पैसे जनरेट करे, ये अर्निंग पर शेयर्स होती है। ठीक है जी। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि अर्निंग पर शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनकम लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे, मतलब मार्केट में जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। एक मैंने एग्जांपल लिया कि अगर किसी कंपनी की नेट इनकम 100 मिलियन है और उसके आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो 20 मिलियन है मार्केट में। ठीक है जी। तो सिंपली आप उसकी इनकम को उसके आउटस्टैंडिंग शेयर पे डिवाइड कर लें, 120/20, तो $5 आपकी अर्निंग पर शेयर होगा। इसका मतलब ये है कि आपका हर शेयर 5, आपकी कंपनी जो है जिस पे भी आप इन्वेस्ट किया है तो उसकी अर्निंग पर शेयर है कि आपको $5 पर शेयर मिलेगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि $5 आपको पर शेयर मिल रहा है, लेकिन आपकी शेयर की प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर की प्राइस $10 है उसके लिए तो ये 50% इट्स गुड मनी, लेकिन अगर किसी Amazon फॉर एग्जांपल अगर उसकी शेयर प्राइस $2300 है तो उसके लिए $5 इज नथिंग, इट्स पीनट, राइट। तो उसके लिए हम फिर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जी ईपीएस, नहीं सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसमें ये होता है कि हम कोरिलेट करते हैं कि जो आपकी शेयर की जो वैल्यू है वो और आपने जो अर्निंग पर शेयर किया उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो एक और एग्जांपल में यही एग्जांपल लिए, इसमें मैंने कह दिया कि मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो 30 है, कोई भी कंपनी XYZ, ठीक है जी। 30 उसकी मार्केट शेयर की वैल्यू है और आपकी जो आपने जो अर्निंग पर शेयर अर्न की थी ऊपर वाले एग्जांपल में 5 थी, तो 30 डिवाइड बाय 5, तो आपकी जो ये जो रेशो आएगी प्राइस टू अर्निंग रेशो 6 होगी। ठीक है जी। तो इससे आपको और अच्छा इंडिकेटर हो जाता है कि अच्छा 6 मींस 5 टाइम्स ऑफ माय टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है इन्वेस्टर के लिए कि वो फौरन इस फिगर को देखते उसको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा जी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो इन द मीन टाइम तो ही इज ओपन टू आस्क, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है और एनी कंफ्यूजन फील फ्री। या काशिफ भाई ने रेज हैंड किया जी, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, काशिफ हियर। ये पी टू ई पी ओवर ई रेशियो जो है ये यूजुअली क्या वैल्यू जो है वो के सूटेबल होती है? ये देख लें आप, यहाँ से हमें क्लियरली है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे मार्केट में जाके। अब सूटेबल वो ये एक फैक्टर नहीं है, खाली हम इस वैल्यू को नहीं देख सकते, हमें बीटा भी देखना पड़ेगा, हमें उसका मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा। हम उसे मतलब किसी एक वैल्यू पे हम ड्राइव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की पी ई रेशो अच्छी है तो कंपनी इज गुड, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वैल्यूज। तो जब हम ये सारी की फैक्टर्स पे चले जाएंगे तो हम ऑनलाइन कुछ कंपनियों के ये सारे वैल्यूज देखेंगे तो फिर आपको वहां से जजमेंट ज्यादा अच्छी होगी। तो मैं कोई फिगर नहीं दे सकता कि जी 6 बेटर है या 8 बेटर है या 10 बेटर है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, राइट। अच्छा जी, चलिए जी अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है जी? डिविडेंड यही होता है कि जो कंपनी ने नेट इनकम मिली है, ठीक है जी, कंपनी ने अगर कोई पैसे कमाए हैं तो वो डिसाइड, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, एक कंपनी ने पैसे कमाए तो उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। चलें, पहली ऑप्शन यही होती है कि वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स में। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कंपनी ने 100 मिलियन अर्न किए हैं एक साल में, तो वो उसमें से 40% जो है ना उसका, वो ये करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ठीक है जी, वो डिवाइड कर देती है। तो जब वो डिवाइड करती है तो 40 मिलियन आपने पे किया है आपके
डिविडेंड पर शेयर मतलब सिंपल ये तो है ना, ठीक है जी। नेट इनकम डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, डिविडेंड पर शेयर, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20 मिलियन है, ठीक है जी। मैं अपना माउस जरा दरमियान में ले आऊं, सॉरी। तो डिविडेंड पर शेयर आप 40, आपने 40 मिलियन दिए हैं, 20 मिलियन आपके मार्केट में, तो डिविडेंड पर शेयर $2, यानी कि हर शेयर होल्डर्स को $2 जो है वो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड ये शो कर, वही बात आ गई कि आपको $2 तो मिले, लेकिन आपको पता नहीं कि दो डॉलर आपके लिए क्या मानी रखते हैं। इट डिपेंड्स के शेयर प्राइस क्या है। अगर किसी की शेयर प्राइस 10, 12, 15 यूरो है तो $2 इज अ गुड मनी, लेकिन अगर वही कोई $1000 है उसकी तो €2 इज नथिंग, राइट। तो उसके लिए हम डिविडेंड यील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है कि कितने % हमें प्रॉफिट मिला है हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो उसका तरीका डिविडेंड यील्ड होता है। तो उसमें ये करते हैं कि हम जो आपको डिविडेंड पर शेयर मिला है ईपीएस, उसको डिवाइड कर देते हैं हम उसकी प्राइस से, ठीक है। अगर उसकी प्राइस $30 है, 2 डिवाइड बाय 30 तो 6.6, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छा अंदाजा हो जाता है ओके कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिला है वो 6.6 है। अच्छा, ये डिविडेंड जो होता है ये क्वार्टरली भी कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ ईयरली भी देती हैं, कुछ कंपनियां देती भी नहीं है, जीरो भी नहीं देती हैं, और कुछ कंपनियां 100% भी अपनी इनकम का दे देती हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इफ द कंपनी डोंट पे द डिविडेंड? कुछ कंपनियां वो देती नहीं है, डिविडेंड पे ही नहीं करती, जीरो। तो वो मनी कहाँ जाती है? इट्स क्वेश्चन टू ओपन टू एवरीबॉडी, सो you are welcome to answer or share. It's not a question but yeah, it's discussion, I would say. कहाँ वो अमाउंट जाती है? अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती तो नेट इनकम का वो क्या करेंगी? रीइन्वेस्ट। एग्जैक्टली, रीइन्वेस्ट। जो कंपनियां ग्रो कर रही होती हैं, तो जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनियां बिजनेस नहीं कर रही। वो उनके पास और प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके पास और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन्वेस्ट करने की, ठीक है, तो वो वहां दे देती हैं। तो यहाँ पे हम एक पोल स्टार्ट करेंगे कि हाउ मच डिविडेंड यील्ड्स डू यू एक्सपेक्ट, कि आप अगर एक कंपनी में एक इन्वेस्ट करें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कितना डिविडेंड यील्ड मिले पर ईयर। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने 6.6 किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसल भाई से, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं, तो आप ये पोल स्टार्ट करें, हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि वो क्या समझते हैं इसके बारे में, उनको कितना डिविडेंड यील्ड मिलना चाहिए पर ईयर। जी फहीम सर, give me a few seconds. जी जी। And the poll would be on your screens in 3, 2, 1, go. All right, we are good to go. जी, All has voted. I will end the polling. और रिजल्ट शेयर होगा अभी आपकी स्क्रीन पे। 3, 2, 1, गो। जी 36% लोग समझते हैं कि अप टू 5% उनके लिए गुड है, और सबसे ज्यादा लोग जो समझते हैं 41% वो कहते हैं 5 और 10 के बिटवीन, और बहुत थोड़े लोग 23% समझते हैं कि 10 to 20%। ठीक है जी, ओपिनियन है अपने अपने, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि अब आप खुद भी देखेंगे डिविडेंड इन रियलिटी में कितना मिलता है, ठीक है जी, इट्स गुड। मैं दोबारा से शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ जी अपनी स्क्रीन। ओके, अच्छा, एक डिविडेंड ट्रैप मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। डिविडेंड ट्रैप ये होता है कि कुछ कंपनियां 100% डिविडेंड दे देती हैं या मैक्सिमम डिविडेंड देती हैं। तो अगर कोई कंपनी अपना 100% डिविडेंड, 100% से मुराद है कि जितने उन्होंने पैसे नेट इनकम हुई वो सारा का सारा उन्होंने डिविडेंड दे दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि डिविडेंड कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंपनी हैव नथिंग टू डू, कि वो अगर सारे पैसे अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो इट्स नेगेटिव बेसिकली। ठीक है, शेयर होल्डर्स में भी हैप्पी हो। अगर आप एक एग्जांपल देखिएगा, WWE आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट,
उन्होंने 2008 से लेकर 2012-13 तक मोर देन 100% उन्होंने डिविडेंड दिया था। 100% से ज्यादा कैसे दिया था, उनके पास कुछ सरप्लस मनी हो गया समहाउ, मतलब उतनी उनकी नेट इनकम नहीं है जितना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन 2013 में एकदम उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, तो उनकी वो फिर बहुत ज्यादा डिविडेंड कट किया था उन्होंने, ठीक है जी। तो डिविडेंड ट्रैप ये होता है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा अपनी इनकम का परसेंटेज दे रही है तो इट्स मीन इट्स नॉट अ गुड सिंबल, दे हैव नो प्रोजेक्ट्स मे बी, तो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा नहीं है। जी अब्दुल मोइज साहब ने हैंड रेज किया, जी प्लीज गो अहेड। जी शुक्रिया। एक सवाल है, जी जी अगर अगर कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है लेट्स से 40%, तो उसकी जो शेयर वैल्यू है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर डिविडेंड एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो शेयर वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा जी, शेयर वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है जब डिविडेंड दिए जाते हैं? जब असल असल में जब डिविडेंड अनाउंस होता है ना, तो उसकी एक एक्स डेट होती है, कि एक्स डेट से मुराद ये होता है कि उस डेट से पहले पहले जिस बंदे के पास डिविडेंड शेयर्स हैं ना, डिविडेंड उसी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद अगर वो सेल कर देता तो नए ओनर को नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो जब डिविडेंड अनाउंस होते हैं ना, तो इट कुड हैपन बोथ डायरेक्शंस। ये डिविडेंड और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी सरदर्द है कंपनीज के लिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द कंपनीज। और अगर हम बात करें, इट्स नॉट अ सिंपल आंसर। तो इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नॉर्मली होता ही है कि जो डिविडेंड पे किया जाता है ना, जब पे हो जाता है डिविडेंड, तो उसका जो डेल्टा होता है ना, उतना उसकी प्राइस पे फर्क पड़ जाता है, उसके कंपैरेटिवली उतना फर्क पड़ जाता है। लेकिन देयर इज नॉट अ जनरल रूल। बात वही आ जाती है कि कंपनी अगर 100% दे रही है, तो मे बी मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं समझता हूं कि इट्स गुड, कंपनी इज गिविंग गुड डिविडेंड, आई शुड बाय इट। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, में समझ नहीं यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसका भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि इसका क्या। लेकिन इन जनरल कंसीडर ये किया जाता है कि जो डेल्टा पेड हो जाता है, ठीक है जी, एक्स डेबिट डेट से पहले पहले, ठीक है जी, वो उसकी प्राइस पे फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बट इट्स नॉट अ फिक्स रूल, ठीक है। बात वही आ जाती है, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट मार्केट, इट्स वेरी ग्रे मार्केट, यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग। तो खाली डिविडेंड ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी शेयर की वैल्यू कहाँ जाएगी। लेकिन खैर एक जनरल रूल कंसीडर किया जाता है कि ठीक है जी, वो डेल्टा होता है, उस पर फर्क पड़ जाता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज रियल। एनी क्वेश्चन मोर अबाउट डिविडेंड्स? चलें जी, मेरा ख्याल हम आगे चलते हैं जी डिविडेंड से। मुझे टाइम भी देखना पड़ेगा, हमारे पास अभी आई गेस मेरे पास है 15 मिनट्स अभी ठीक है जी। अच्छा जी, आपने पोल किया, गुड। तो ये एक रियलिटी है कि डिविडेंड यील्ड दिया कितना गया है बड़ी कंपनियों ने। मैंने कुछ बड़ी कंपनियों के लिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को, ठीक है जी। तो इसके अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो इट्स लेस देन 5%। ओनली AT&T अगर आप देखें, ये मैं अपना माउस लाने की कोशिश करता हूँ जी, सिर्फ इसने कुछ 6.75, ये एक टेलीकॉम कंपनी है अमेरिकन, इसने कुछ ज्यादा की है जी, ठीक है जी, डिविडेंड परसेंटेज में अगर हम देखें तो, ठीक है जी। बाकी सारी कंपनियां अगर हम देखें, अल्फाबेट यानी कि जो हमारी गूगल है 1.38, माइक्रोसॉफ्ट में 1.77, लेकिन असल में होता ही है कि डिविडेंड यील्ड तो कम होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है जी। अगर आप डिविडेंड कम भी दे रहे हैं, कंपनियां अगर कम दे रही हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि उससे फिर आपको कैपिटल गेन मिल जाता है, यानी कि आप आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। अगर कंपनी पेइंग नथिंग, इवन बहुत सारी कंपनियां, नेटफ्लिक्स ने देखें, दिया ही कोई नहीं है। तो डिविडेंड ठीक है, sometime it's good, sometime it's bad. As I said, it's big chapter, ये बहुत बड़ी सरदर्द है कंपनीज के लिए डिविडेंड डिसाइड करना, ठीक है जी। अच्छा जी, कैपिटल गेन क्या होता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। कैपिटल गेन ये होता है कि आपका जो डिफरेंस होता है जब आपने शेयर खरीदे और बेचे हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। एक तो डिविडेंड आ गया ना, ठीक है, दूसरा कैपिटल गेन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर खरीदे 30 पे और आपने उसको सेल कर दिया 33 पे, तो डेफिनेटली आपका 10% जो आ गया कैपिटल गेन आ गया। तो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका डिविडेंड जो कंपनी ने आपको दिया है, दूसरा आपका कैपिटल गेन, और माइनस आपने जो ट्रांजैक्शन फी या कोई और एक्सपेंस आए हैं ब्रोकर की कुछ, वो माइनस करने होते हैं आपने, तो वो टोटल आपका रिटर्न है। अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6.6 जो हमने पीछे एग्जांपल में देखा था, 10% इसका गेन आ गया। फीसेस चूंकि बहुत माइनर होती हैं, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया वो 16.6 आ गया इन टोटल। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज इन अ 1 ईयर, दैट्स गुड इनफ, ठीक है जी।
तो हमें दोनों चीजें कंसिडर करनी होती हैं, डिविडेंड भी और कैपिटल गेन भी। कुछ लोग ज्यादा कैपिटल गेन में इंटरेस्टेड, पर्सनली मैं डिविडेंड का फैन नहीं हूँ, मुझे अगर डिविडेंड 0 भी मिले तो आई एम हैप्पी। तो मेरा जो ज्यादा फोकस होगा वो कैपिटल गेन में होगा, क्योंकि वहां पे आपका मार्जिन ज्यादा होता है। अगर कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस, आपको पता ही होगा अमेजन के प्राइस कहाँ गए पिछले 2 सालों में, ऑलमोस्ट डबल। टेस्ला के प्राइस देखे होंगे आपने, इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि जंप की है। अच्छा जी, अब कौन से फैक्टर्स हैं मार्केट मोमेंटम या कौन सी न्यूज़ हैं जो कि किसी भी कॉरपोरेशन पे असर डालती हैं? अच्छा, एक तो है मार्केट मोमेंटम, वो ओवरऑल है इम्पैक्ट, वो किसी एक कॉरपोरेशन पे नहीं, वो पूरी अम्ब्रेला है, वो सब पे असर डालता है। उसमें जैसे कि कोरोना वायरस, जर्मन की मार्केट ऑलमोस्ट 40% नीचे गई थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट 90% रिकवर हो गई है, ठीक है, बहुत थोड़ा मार्जिन रह गया है। अच्छा, उसमें से भी इंटरेस्टेड बात यह है कि जो टेलीकॉम या आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी है वो जल्दी ग्रो अप की है, ठीक है, या जल्दी उन्होंने कम बैक किया अदर देन दूसरी कंपनियां जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जिनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो भी रिकवर नहीं की, ठीक है, जैसा कि डाइमलर है, फोल्क्सवागन है, क्योंकि बड़ी कंपनियां, इनको वापस आते टाइम लगेगा क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई, अब इनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें जर्मन मार्केट की कंपनियां, लेट सपोज हम देख लें टेलीफोनिका देख लें, डोइचे टेलीकॉम देख लें, आइनोलैंड आइनोलाइन इंटरनेट देख लें, तो ये जो जितनी भी इंटरनेट और टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी ऑलमोस्ट रिकवर्ड, बल्कि कुछ कंपनियां ने तो जो शेयर मार्केट उनसे पहले थी और जो बाद में थी उससे भी ज्यादा वो रिकवर कर गई हैं, क्योंकि उनके लिए इजी था, उनका बिजनेस भी उतना इम्पैक्ट नहीं, डेफिनेटली उनको इम्पैक्ट जरूर हुआ था इस मार्केट में, बट दे रिकवर्ड, ठीक है जी। दूसरा आ गया जी, एक और एग्जांपल मैंने लिया अभी यूएसए में, फॉर एग्जांपल अगर अभी मुझे कोई कहे कि यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन आपने देखी है, अनरेस्ट है इस वक्त, क्लैशेस चल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, तो इट्स वेरी रिस्की एट द मोमेंट टू इन्वेस्ट इन द यूएस। पॉलिटिकल सिचुएशन, कुछ कंट्रीज में कुछ गवर्नमेंट को पसंद नहीं किया जाता या वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं होते, तो ये भी क्रूशियल होता है हमेशा जब पॉलिटिकल सिचुएशन कोई चेंज हो, इलेक्शंस हो, तो ये भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है जी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की कि वो अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट कितना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो कभी कहीं भी नहीं हो सकती, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, अगर इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स अगर आप में से कोई है बैकग्राउंड तो उसको आइडिया होगा कि जीडीपी ग्रोथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सम टाइम एक लिमिट तक रखना जरूरी होती है, 4% 3%, जीरो कभी भी आ नहीं रख सकते उस, अगर आप जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आपकी जीडीपी ग्रोथ पे नेगेटिव फर्क पड़ता है, ठीक है जी। इसी तरह आपने कुछ इन्फ्लेशन भी लाजमी रखनी होती है विद इन अ लिमिट, जीरो इन्फ्लेशन के साथ भी आप अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे क्रूशियल होता है ना वो इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी में, स्टॉक मार्केट के लिए, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ना, तो लोग, स्टॉक मार्केट चूंकि रिस्की है लेकिन उस पर इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, जो लोग रिस्क नहीं बियर करना चाहते तो वो उठा के अपनी मनी बैंक्स में रख देंगे, उनको पता है हमें यहीं से 10% 12% या 15% भी आ रहा है तो वहां से लेंगे। तो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव भी होता है। आप किसी को पता है कि ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें जीरो हो या ऑलमोस्ट नेगेटिव हो, ऐसा कंट्री, एनी आइडिया? जर्मनी में तो अभी 3% 4% ऑलमोस्ट इतना है। I guess in USA it's pretty close to negative, huh? I mean, I, after this current situation. at the moment I have no idea, लेकिन at least जापान और स्विट्जरलैंड ऐसे कंट्री तो जरूर है। यूएसए का आई एम नॉट श्योर क्या इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे, मे भी आप ठीक हो, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन जापान में बहुत अच्छा माइनस रहा, स्विट्जरलैंड में भी ऑलमोस्ट जीरो या माइनस कंसिडर होता है। उसकी वजह ये होती है कि जीडीपी ग्रोथ करने के लिए या लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट चाहते हैं कि लोग अपने बैंकों में पैसे ना रखें, बल्कि वो पुश करते हैं कि लोग बिजनेस करें या इसको खर्च करें, तो वो नेगेटिव में ले जाते हैं कि लोग अपने बैंकों में पैसे ना रखें इसको, या लोग बैंकों से पैसे लें, लोन लें, ताकि मतलब ग्रो करने के लिए जीडीपी, ठीक है। तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे 10% आई गेस, ठीक है जी, तो वहाँ पे लोगों के लिए सूट करता है कि वो बैंकों में पैसे रख लें या लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद लें या वट। लेकिन जर्मनी में ऑलमोस्ट नथिंग, अगर आप पैसे रखते हैं तो शायद आपको 1% से भी कम इंटरेस्ट मिले, तो जर्मनी के लिए फिर ज्यादा आइडियल ये है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या कहीं और, वट एवर वी थिंक, ठीक है जी।
अच्छा जी, ये तो एक ओवरऑल मैंने मोमेंटम बनाया था। अब दूसरा होता है कि न्यूज़ जो इंडिविजुअल्स होती हैं, स्कैंडल फॉरवे का आपने सुना ही होगा, 3-4 साल पहले जो इनका डीजल का फिल्टर का आया था कि उसमें कुछ पार्टिकुलर्स रह जाते थे जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं थे, या उन्होंने कुछ गलत फिल्टर या कुछ गलत पार्ट्स लगा दिए थे, तो उसकी वजह से भी स्कैंडल आया और फॉरवे बड़ी इम्पैक्ट हुई थी। इसी तरह कुछ कंपनियों पे लॉ सूट्स चल रहे होते हैं। अभी जर्मन कंपनी है बेसएफ, उस पे एक लॉ सूट चल रहा था, उसकी वजह से वो बड़ी डाउन आई है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल है मैंने ली है कि अगर आपकी जो एग्जेक्टिव पोजीशंस होती हैं, अगर वहां पे कोई बड़ा चेंज आ जाए तो वो भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों तरफ हो सकती है। एक एग्जांपल है WWE ने अभी अपना को प्रेसिडेंट फायर किया तो उसकी जो शेयर मार्केट थी वो बड़ी नेगेटिव आई थी। ठीक है जी। इसी तरह कंपटीटर्स, अगर कुछ ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे आपसे आपसे बेहतर प्रोडक्ट बनाने वाले लोग आ जाएं तो वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसा कि अभी आपने देखा ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ गई हैं। ठीक है जी। डीजल गाड़ियां तो खैर अब फ्यूचर ही नहीं है। तो ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है, जर्मनी की स्पेशली। तो उसका एडवांटेज किसको मिला? टेस्ला को मिला, क्योंकि टेस्ला इस वक्त, सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि टेस्ला इस वक्त सबसे बड़ी लीडिंग मार्केट है इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की, और वो फ्यूचर है। ठीक है जी। तो उसका अब टेस्ला के देखें तो मार्केट या शेयर डबल हो गए हैं पिछले साल में। और अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखें तो वो इस वक्त बड़ी स्ट्रगल कर रही है। तो कंपटीटर्स भी बड़े क्रुशियल होते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो आ जाता है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है नॉर्मली, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर होता है उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अम, और उनका ग्रो करना आसान होता है। एनीवन कैन गिव एग्जांपल। क्यों टेक्नोलॉजी कंपनियां क्यों जल्दी ग्रो कर जाती हैं? जैसा कि अमेज़न देखें बड़ी जल्दी ग्रो कर गई, गूगल बड़ी जल्दी ग्रो कर गई, फेसबुक बड़ी जल्दी ग्रो कर गई। ऑन द अदर हैंड देखें, अगर हम टाइमलर देखें, उसको 100 साल से भी ज्यादा लग गए हैं, उस पोजीशन पे आई नहीं। ठीक है जी। मतलब अगर आप दुनिया के टॉप कंपनीज देखें तो वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जैसा भी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, गूगल हो। क्या रीजन है ये कंपनियां क्यों जल्दी ग्रो कर जाती हैं? ये कंपनियां क्यों ज्यादा बड़ी हो जाती हैं? एनी आइडिया? उनके लिए अपना बिजनेस अपस्केल करना इजी होता है एज एग्जैक्टली कंपेयर टू अ प्रोडक्शन यूनिट। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए स्केल अप करना बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी है, उनको कोई अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए बहुत बड़ा। उनको अगर डायमलर कहे कि उसने अपनी प्रोडक्शन डबल करनी है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। उसको पूरा यूनिट लगाना पड़ेगा, उसको डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही अमेज़न कहता है कि मैंने अगले साल अपने कस्टमर डबल करने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको एक प्लेटफॉर्म ही चाहिए ना, उसको कुछ सर्वर चाहिए होंगे मे बी, वो भी क्लाउड पे आ गया सब कुछ। ठीक है जी। या माइक्रोसॉफ्ट कहे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनी के लिए ग्रो अप करना, स्केल अप करना बहुत ईजी होता है रादर देन ऐसी कंपनी। इसी तरह कंसल्टिंग की बात करें, कंसल्टिंग भी ग्रो अप करना आसान होता है, लेकिन कंसल्टिंग चूंकि एक सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है जी, तो उसको ग्रो अप करना तो आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आ जाता है आपके मैन पावर पे आ जाता है। टेक्नोलॉजी की जो फंडामेंटल है वो टेक्नोलॉजी, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, एक बार एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो वो सबके लिए अक्रॉस द ग्लोब सिमिलरली रीचेबल है। उसकी सर्विसेज सेम होंगी, ऑलमोस्ट सर्विस लेवल सेम होगा। लेकिन अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो मे बी जर्मन में एक कंपनी है, लेट्स सपोज एक्सेंचर है, या कोई भी आप कंसल्टिंग कंपनी ले लें, ठीक है जी, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को रखना ना, अच्छे एम्प्लॉयर्स को रखना, तो एक चैलेंजिंग होगा। उनको ग्रो करना उतना आसान नहीं होगा जितना कंसल्टिंग। ओके, कंपैरेटिवली प्रोडक्शन की निस्बत आसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी की निस्बत थोड़ा सा कम होगा। रियल स्टेट भी आप कर सकते हैं जी। रियल स्टेट बेहतर जानते हैं, पूरी दुनिया में ग्रूम कर रही है, तो रियल स्टेट में आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसमें भी बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत होते हैं। इन पे बहुत लॉ सूट्स होते हैं। इनके हमेशा कोई ना कोई क्लैशेस चलती रहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं। केमिकल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मैंने कहा ऑटोमोटिव, एनर्जी, होम अप्लायंसेज, यहाँ के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है मैंने आपको थोड़े से बता ही दिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सेक्टर है आप, अच्छा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सेक्टर्स के अलावा भी कोई और सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैंने सारे नहीं किए, मैंने रफली बस जो मेरे ज़हन में है मैंने कर दिए। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो आप यू आर ओपन टू शेयर प्लीज। मे बी मेरे नॉलेज में भी इजाफा जो मैंने कवर नहीं किया या मुझे कवर करना चाहिए था। कौन सा कोई सेक्टर मैंने मिस किया है क्रूशल, जहाँ पे आप समझते हैं कि दैट्स वेरी चार्मिंग?
ये ऑयल इंडस्ट्री को आपने केमिकल में कवर किया? ऑयल इंडस्ट्री को हम केमिकल में कर सकते हैं, लेकिन चलें उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। वो खैर केमिकल तो नहीं आती, बट यू आर राइट, मैंने मिस कर दिया उसको, ऑयल इंडस्ट्री को मैंने मिस कर दिया। इट्स अ बिग सेक्टर, या यू आर राइट, वो भी चार्मिंग, लेकिन इस वक्त वो प्रेशर में है। इस वक्त आपको पता है, इस वक्त ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की है, क्योंकि आपको पता है ऑयल काशिफ प्राइसेस के साथ। जी जी। इसमें अभी जो कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा मिनिमम किया है। जो यूएस की ऑयल इंडस्ट्री है या दूसरी जो इवन जो हमारी अरब इमारात हैं, उन्होंने भी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस एक्सपेक्टेड है बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बूम कर सकती हैं ऑयल सेक्टर की। दैट्स एग्जैक्टली, जैसा जस्ट कि एन ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा हुआ ये है कि अभी आपने जैसे 3-4 माह पहले देखा हो कि रशिया और सऊदी अरेबिया में चूंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ, ऑयल की चूंकि डिमांड कम हो गई थी, तो उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं हुआ प्रोडक्शन रिड्यूस करने का, ठीक है। तो बल्कि सऊदी अरब ने क्या किया, उन्होंने अपनी पहले वो 10 मिलियन और बिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे, मिलियन और बिलियन आई एम नॉट श्योर, तो उन्होंने उसको इंक्रीज करके 11 कर दिया था, ठीक है जी, बैरल पर डे, जितने भी है मिलियन और बिलियन आई एम नॉट श्योर। तो उससे ये हुआ कि आपकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी, तो आपने देखा था कि जो अमेरिकन ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसकी प्राइस -$35 में चली गई थी, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने चीखो पुकार की प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अब उनमें थोड़ा सा कुछ एग्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन रिड्यूस करने का। तो आप सही कह रहे हैं, अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है प्रोडक्शन रिड्यूस करने का, आई गेस अभी प्राइस 25 के अराउंड होगी क्रूड ऑयल की, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखी नहीं पिछले 1-2 हफ्तों से। तो चूंकि पिछले 5-6 सालों से या कुछ सालों से इसका बेंचमार्क था अराउंड 60, ठीक है जी, 60-70 के दरमियान ये रखना चाहते हैं। तो अभी अगर 25-30 है तो वी कैन एक्सपेक्ट टू बी डबल इफ दे कम टू एन एग्रीमेंट, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। जी किसी ने हैंड रेस किया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर, टेक्सटाइल सेक्टर का आपने जिक्र नहीं किया। टेक्सटाइल का भी मैंने जिक्र नहीं किया, बिल्कुल। असल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई एम नॉट श्योर, हम चूंकि जर्मन सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ पे कि कितना बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जर्मन मार्केट आपको पता ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा घिरी हुई है। एक टाइम था यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर होता था। पाकिस्तान के लिए तो खैर वो एक सेपरेट मार्केट है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस जर्मन मार्केट को किया, तो आई एम नॉट श्योर कि ऑब्वियसली बड़ा सेक्टर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को देखें जहाँ पे टेक्सटाइल ज़्यादा बूमिंग है, फॉर एग्जांपल इंडिया या बांग्लादेश, मेरा ख्याल वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो वहाँ पे अगर कुछ बड़ी कंपनीज हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है डेफिनेटली। एनर्जी कंपनीज, वो भी आप उसको ऑयल एंड गैस में कंसिडर करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईऑन है, आरवेए है, इस तरह की ये काफी बड़ी कंपनीज हैं। जी वो मैंने एनर्जी में लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग आप नीचे देखें, ऑटोमोटिव एनर्जी, तो वो एनर्जी सेक्टर तो बहुत बड़ा है यहाँ पे। एऑन डेफिनेटली, एऑन इज वेरी अट्रैक्टिव कंपनी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी में कंसिडर होगी यहाँ पे। जी अब्दुल मोइज भाई ने हैंड रेस किया जी। जी मेरे जहन में आ रही है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अच्छा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जी आप एडिडास की बात करें, नाइकी की बात करें, जी बिल्कुल वो भी अच्छा है, उसको भी मैंने मिस कर दिया है। आई एम नॉट श्योर कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हैं, बेसिकली वो मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर अगर हम इस तरह जाएं तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगी, तो उसको हम मैंने सिर्फ ये एग्जांपल डाली है, तो स्पोर्ट्स भी इसी का सेक्टर हो सकता है, क्योंकि वो भी बेसिकली मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्शंस या व्हाटएवर। जी Food sector is pretty attractive, like McDonald's, Starbucks, and stuff like that. अच्छा जी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं जी। जी फूड, बिल्कुल मैंने उसको भी मिस किया, डेफिनेटली फूड इसमें नहीं है। गुड पॉइंट। अच्छा उसमें मेरा ज़्यादा होमवर्क भी नहीं है, वैसे मैंने उस तरफ कहीं देखा नहीं है, लेकिन आप अच्छे पॉइंट्स आपकी वजह से मुझे भी लर्न करने का मौका मिल रहा है कि अगर मैंने किसी इंडस्ट्री को कभी नहीं देखा तो इट्स गुड ऑप्शन। मैंने कभी इनकी तरफ नहीं ना इन्वेस्ट करने का सोचा, ना मैंने कभी इन पर रिसर्च की ज़्यादा, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च इन चीज़ों पर की है जो मैंने मेरे सामने इस वक्त खुली है, तो मैंने वही लाया। इट्स गुड, या फूड इंडस्ट्री कुड बी अ गुड ऑप्शन। फ़हीम साहब हमारा टाइम वैसे तो आपको हो गया, लेकिन हुमैरा और चूंकि अब्दुल मईज बहुत एक्साइटेड हैं, ही इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी कैन गो थ्रू विद द क्वेश्चन आंसर सेशन लेटर। हुमैरा ने कोई सवाल नहीं पूछा अभी, वी कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड देन वी कैन मूव ऑन बिकॉज़ यू वांट टू हैव सम ऑनलाइन आल्सो, राइट?
चले, अगर हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट्स ओके, मे बी एट द एंड हम थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देंगे। Alright. तो आई थिंक इट्स ऑलराइट। Okay. अगर लोगों के पास है क्वेश्चन तो इट्स ऑलराइट। जी हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम, या हुमैरा हियर। नहीं, पहले क्वेश्चन से पहले तो मैं इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स थे उसमें प्रेशियस मेटल्स या गोल्ड वगैरह का पूछना चाह रही थी कि उसके बारे में क्या ओपिनियन है आजकल। गोल्ड को आप केमिकल में कंसिडर कर रहे हैं या नहीं, अच्छा, असल में जो आप बात करें वो कम्युनिटीज में आ जाता है, वो स्टॉक में नहीं आता। वो कम्युनिटी सेपरेट है, उसमें आपका गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, इवन ऑयल भी जो है, अगर हम ऑयल खरीदते हैं तो वो कम्युनिटीज में आ जाता है, ठीक है, वो स्टॉक में नहीं आता। तो आपको रियली खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड खरीदती हैं ना, उसके मार्केट में अगर उसको ऑनलाइन खरीदती हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो गोल्ड रियल में खरीद लिया है, वो आपका गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है कहीं, ठीक है जी। ओके, स्कैंडल ये भी है कि उनके पास उतना गोल्ड है नहीं जितना उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन अब गोल्ड में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे आई थी, तो गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी। तो वो स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता, बट बी केयरफुल। अब मार्केट चूंकि रिकवर कर रही है तो इट कुड बी पॉसिबल कि लोगों ने वहां पे पैसे कमा लिए, द पीपल वांट टू कम बैक। तो अगर आपका इरादा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तो बी केयरफुल, ठीक है जी, क्योंकि मार्केट वापस आ रही है तो इट माइट बी, आई एम नॉट श्योर, नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर कि आप ये कवर करने वाले थे ऑलरेडी या नहीं, बट आई विल जस्ट शूट देम। एक तो ये कि अगर हमें यहाँ जर्मनी से बैठ के पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एक्सेस करना है, पहली बात कैसे करें, और दूसरी बात रिकमेंडेड है कि हम करें? पहली बात तो ये कि आप मेरा ख्याल यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, ज़्यादा लोकली है। शायद कुछ कंपनीज आपको यहाँ से मिल जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा ना ऑनलाइन ब्रोकर का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे है कि लोग बैठे हुए हैं, फिजिकल ब्रोकर्स, आप उनके पास जाके अपना अकाउंट खोलते हैं और वो आपकी मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं। फिजिकल ज़्यादा है, शायद कुछ ऑनलाइन भी हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है वहाँ के मार्केट का, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। उसकी ना रिकमेंडेशन की वजह ये है कि अगर आप यहाँ से यूरो में वहाँ पैसे भेजेंगी तो कल को आपका यूरो अगर लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर 10% अगर आपका डी वैल्यू हो जाता है, और अगर आपने 10% वहां से पैसे कमा भी लिए तो वो आपका नलीफाई हो जाएगा, तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है तो उसके पास पाकिस्तान रुपीज में करेंसी है तो वो वहां पे जरूर करें, लेकिन यूरोज में बैठ के वहां इन्वेस्ट करना आई वुडंट रिकमेंड इट। अच्छा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें स्टॉक मार्केट को एक्सेस करना, तो कोई ब्रोकर, ऑनलाइन ब्रोकर आप जी, रिकमेंड करें? इसकी हम एग्जांपल करते हैं, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको। ठीक है। और वाइल वी आर एट इट, तो एक पर्सनली जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसमें एंटर होना, ये जो आपने सारी एग्जांपल्स वगैरह बताई, उसकी बेसिस पे दैट्स रिलेटिवली आई वुड से इजी फॉर मी। एग्जिट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है, तो कैन यू रिकमेंड कि हम एग्जिट कैसे करें? लाइक कितने % गेन पर हम अपना मेंटल चेक रखें कि ओके दिस इज हाउ मच आई हैव अर्नड एंड नाउ आई शुड एग्जिट? देखिए नहीं, जब आप एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले आप एग्जिट के लिए आप अपना लोअर बेंचमार्क लाजमी तय कर लें, ठीक है जी। लोअर बेंचमार्क में ये है कि आप अपनी मनी अगर फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी ठीक है जी, अगर 5% मेरी अमाउंट डिक्रीज हो तो मैं, या 6% या 7%, तो मैं जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है या आप जितना बियर कर सकते हैं तो आप उसको सेल पे लगा सकते हैं कि इतना अगर मैं लूज करूँ तो आई नीड टू गो आउट, ठीक है जी। अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाएं तो पॉजिटिव पे मैं नहीं कहूँगा, उस पर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रखें, 6 माह 6 माह 1 ईयर, तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा चले। तो सेल करने की अगर कंपनी अच्छी जा रही है तो जरूरत नहीं होती, उसको आप वेट करें, देखें। लेकिन नेगेटिव साइड पे हमेशा आप एक बेंचमार्क रखें कि अगर मैंने ये शेयर खरीदा है, अच्छा उसमें एक ट्रेलिंग ड्रॉप होता है या ट्रेलिंग लॉस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है और उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। वो आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा, वो मैं आपको एग्जांपल में ना आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आई हैंड ओवर द माइक बैक टू अदर्स। थैंक यू। जी जी, ये किसी और भाई ने भी या किसी बहन ने हैंड रेज की है। जी, yeah, sorry, not to hijack, just to add some more information about the gold. About the first question, there are some ETFs that you can invest, so you don't have to own always the physical gold. There are some mining ETFs as well. As you mentioned, Fahim, right now it's a bit risky, but yeah, there are good options to actually just hold some ETFs and
just invest some money in that sector. And about how to exit, there are a lot of technical indicators that you can really follow, and they helps a lot. Especially you have to really keep in mind that when the stock is really overbought, don't get inside the market. Just stay away from it. And when it's really undervalued, then it's really time to get in. And but there are a number of indicators. In general, sorry, go on. Yeah, that's it. जी आपने बिल्कुल सही कहा। EFTs पे असल में मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ, ठीक है आपने गुड एडिशन किया, थैंक्स। और दूसरा एग्जिट होना, अच्छा मैंने उनको बताया था कि आप सिर्फ अपने रिस्क पे करें। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की करें तो टेक्निकल इंडिकेटर एंटर होने के लिए भी उतने ही जरूरी है जितने एग्जिट होने के लिए। तो जितने भी हमने पीछे इंडिकेटर्स की बेसिक्स पढ़ी है ना, तो हम जिस लेवल पे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, तो उनके लिए बड़ा टफ होगा ये सारे इंडिकेटर्स को देखना, या उनके पास इतना टाइम नहीं होगा ना कोई इतने इंडिकेटर्स देखें कि वो कैसे एवेल्युएट करें। अगर तो कोई फुल टाइम ब्रोकर है या उसके पास इनफ टाइम है तो इट्स परफेक्ट। Oh, definitely. I mean, yeah, sorry to interrupt you again. Definitely, you're right. But there are a number of websites who can just give you a summary based on number of these technical indicators, and never go with the gut feeling. That's always bad. Just so you know that, I think that this would go really good. Don't do that. It always helps, as you mentioned, that even if you want to enter in the market, it's always good to go in these websites, check the summary. If you don't know even the details of these indicators, they always give you a summary which just mention it's a time to good to buy or it's a time to just stay away. बिल्कुल लेकिन मोस्टली वो ना पेड होती हैं, तो अब उस कंपनी को सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा, मैंने एक दो कंपनियों को जानता हूँ, उन्होंने अपनी आप हमेशा रेटिंग चेक कर सकते हैं खैर कि जो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती हैं वो पेड होती हैं, नॉर्मली फ्री तो कोई भी नहीं करता आपको। तो उसमें ये होता है कि कुछ कंपनियां, अच्छा जी हमने ये रिकमेंड की थी टॉप 10, ये देखें जिसका स्टॉक 100% बढ़ गया, 120 बढ़ गया, 130 बढ़ गया। लेकिन जब आप रियलिटी करें तो उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल 500 कंपनियां रिकमेंड किया तो उसमें से अगर वो अपनी 10 निकाल लेंगे बेस्ट और अपनी वर्स्ट नहीं निकालेंगे, हर वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन यू आर राइट, आपके पास कितना टाइम है, आप कितने इंडिकेटर देखना चाहते हैं, आप कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इट्स अ बिग फील्ड। हम 1-2 घंटे में सीख भी नहीं सकते और ये तो सालों का काम है, ठीक है जी। तो मुझे क्विकली आगे जाना है क्योंकि हमारे पास टाइम आई गेस कम है। तो जी हाउ एंड वे टू स्टार्ट, सबसे पहले आप डिपो अकाउंट खुलवा सकते हैं आपके बैंक के साथ, बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है जी, वो आपके बैंक के साथ ही अटैच होते हैं, आप अपने बैंक से चेक कर सकते हैं, तो उधर से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन ब्रोकर्स होती हैं, आपने जो चीज़ें ऑनलाइन ब्रोकर सेलेक्ट करते हो चूज़ करना, ईज ऑफ यूज़, डेफिनेटली लैंग्वेज सपोर्ट, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं यहाँ पे जो सिर्फ जर्मन करते हैं, कुछ बाय लैंग्वेज भी करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी पड़ती है, ठीक है जी, इट डिपेंड्स, 2 यूरो से लेके 5, 6, 7 यूरो तक पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है, तो आपने ये कंसिडर करनी है। तो फिर उसके फीचर्स भी आपने देखने हैं। एक फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ट्रेलिंग लॉस, आई एम नॉट श्योर कि हर बंदा या हर प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है कि नहीं ना, तो जो मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें तो एटलीस्ट ये यूज होता है, ठीक है जी। फिर आप कौन सी मार्केट में जाना चाहते हैं, जर्मनी, यूरोप, यूएस, ऑल द बेस्ट, सभी अच्छी हैं, इस वक्त यूएस में ना जाइएगा, बाकी खैर है, ठीक है जी। इंडेक्स आप देख सकते हैं, डेक्स 30 जो कंपनी, जो जर्मन की बेस्ट टॉप 10 कंपनी है, ये उसका इंडेक्स बताता है कि जी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस वक्त। तो डेक्स 30 इज द मोस्ट सिक्योर, आई वुड से हेवन। या फिर अगर आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो तो डेक्स, तो उसमें है कि जो टॉप टेक्नोलॉजिकल कंपनी है ना जर्मनी की 30 वो हैं, तो ये दो इंडेक्स बड़े क्रूशल हैं अगर आप जर्मन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये दो आप देख सकते हैं, टेक्स डेफिनेटली। तो अब हम थोड़ी सी हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। गिरो में पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ जी। हम थोड़ा सा मे भी 5-10 मिनट आवर टाइम हो जाए तो सॉरी फॉर द पीपल। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं मेरी वेबसाइट शेयरिंग मेरी? जी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी, मैं ये एक साइट है डेजीरो, ठीक है जी, इस पे यूज करता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बड़ी अच्छी है, मतलब मिनिमम है, ठीक है जी। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे
सिंपल है, आप किसी चीज़ के भी शेयर खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बेस एफ है, ठीक है जी, जो जर्मन कंपनी है, आप इसका खरीदना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे जाएं, आप इसका मार्केट देख सकते हैं, इसके प्राइस कहाँ से कहाँ गए। ये आज के हैं, अगर आप एक वीक के देखना चाहें तो प्राइस आप देख रहे हैं, ट्रेंड बढ़ने का है। 6 मंथ 3 मंथ्स में देखें तो इट्स अप एंड डाउन, ठीक है जी। 6 मंथ्स में देखें तो यहाँ पे ये तो वर्स्ट टाइम था ना, जहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट जो है वो नीचे आ गई थी, ठीक है। तो अब ये इट्स ऑलमोस्ट नीड टू रिकवर। अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं तो हम डेक्स मार्केट ये है जी जिसकी मैं बात कर रहा था, और अगर आप 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो ये वो टाइम है जहाँ पे सारी मार्केट ड्रॉप हुई थी, ठीक है जी। अगर आप इसका इंडेक्स पॉइंट देखें तो इससे पहले ऑलमोस्ट 13,000 था, तो आप देख सकते हैं मार्केट इज अराउंड टू, बस थोड़ा सा रह गया, इट्स अराउंड टू रिकवर, इट्स गोइंग टू बी रिकवर। अच्छा जी, एग्जांपल सिंपल ये है कि अगर आप किसी भी खरीदना चाहते हैं शेयर्स तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी कंपनी XYZ ले लें, यहाँ पे जाएं, कॉफन करें, ठीक है जी। इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगी। लिमिट, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंने इसकी प्राइस आप सपोज करते हैं कम होगी, तो आप इधर डालते हैं 21, ये इसकी करंट प्राइस है ना, तो आप कहते हैं नहीं मैं इसका खरीदूंगा 20, जब इसकी प्राइस हो जाएगी ना 21 कम हो जाए तो मैं खरीदूंगा कितने यूनिट, मे बी 10 यूनिट्स वट एवर, ठीक है जी। तो नीचे है कि ये आपकी जो ऑर्डर है कितनी देर तक रहे, टारगेट स्कूल टीच मीन ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक रहेगा, और अगर आप इसको भी फिक्स कर दें तो ये अनलिमिटेड आपका ऑर्डर रहेगा, जब इसकी प्राइस इस पे आएगी आप खरीद लेंगे। और अगर इसकी प्राइस 21 पे नहीं आती, मे भी ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो ये आप नहीं खरीद सकेंगे, ऑर्डर पड़ा रहेगा आपका पेंडिंग। दूसरी ऑप्शन है मार्केट से खरीद सकते हैं। मार्केट का मतलब कि इस वक्त जो करंट रेट है, ठीक है जी, उसकी आप जितने यूनिट खरीदते हैं वो खरीद सकते हैं। अच्छा जी, ये तो खरीदने के लिए आ गया। अगर आपने कोई सेल करनी है, ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने डॉयचे लुफ्थांसा का सेल करनी है, मैं इसको फरकॉफन करता हूँ, ठीक है जी, और मैं इसको कहता हूँ जी मैंने, एक तो है आप मार्केट में आप सेल कर दें, ठीक है जी, जो करंट मार्केट की प्राइस होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। दूसरा लिमिट, आप कहते हैं जी मैंने खरीदे थे 21 वट एवर प्राइस, ठीक है जी। मेरा ख्याल हम लुफ्थांसा पे आए नहीं अभी, ये प्राइस कोई और ही बता रहा है मुझे, सॉरी। अच्छा जी, डॉयचे लुफ्थांसा फरकॉफन, या अब आ गए हम डॉयचे पे, ठीक है जी। इसकी प्राइस है ये इस वक्त 10.95, आप कहते हैं जी मैंने 10 पे खरीदी थी, मैं 11 पे बेचना चाहता हूँ, तो आप इसको फरकॉफन 11 पे कर दें, ठीक है जी। और जितने यूनिट आपने सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट, तो आप उसको जितनी देर ऑर्डर लगाना वही सेम ऑर्डर प्लेस कर दें। अच्छा, अब फरकॉफन पे आप ये भी कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में ये होता है कि आपने 10 में खरीदे थे, आप कहते हैं अच्छा अगर ये मार्केट नीचे जाती है, लेट सपोज अगर ये 9 पे जाती है तो 9 पे ये सेल हो जाए, क्योंकि मैं बियर कर सकता हूँ रिस्क इतना ज्यादा, ठीक है जी, सिर्फ 9 पे, तो जो ही प्राइस की डाउन जाएगी 9 पे, तो आपके ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो इस पे आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड है कि आप अगर मार्केट इससे नीचे जाती है 9 से, तो आपके सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, सबसे क्रूशियल है ये ट्रेलिंग स्टॉप। अच्छा, ये है कि इस वक्त मार्केट की प्राइस है 10.95, आप कहते हैं जी जब इसकी प्राइस हो ना, लेट्स सपोज 10, ठीक है, तो ये सेल कर दे जितने यूनिट है, और इसकी ट्रेलिंग प्राइस आप कर देंगे परसेंटेज में, लेट्स सपोज 5% का डिस्टेंस रखते हैं। उससे ये होगा कि इस वक्त इसकी प्राइस है 10.95, और आपने कहा कि जब ये 10 पे जाए तो सेल कर दे, लेकिन आपने ये भी साथ में कहा कि इसका जो अपस्टैंड है वो 5% हो। इसका मतलब है कि अगर ये प्राइस 5% बढ़ जाती है, और चले मैं कैलकुलेशन के लिए 10% ईजी कर देता हूँ, वैसे तो 5-6 काफी होता है। लेट्स सपोज अभी उसकी प्राइस 11 है, तो अगर उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है, यानी कि कल को 11 हो जाती है, $11 हो, यूरो वट एवर, तो आपका जो जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना, ये ऑटोमेटिकली 10 से बढ़ के ये भी उतने परसेंट ज्यादा हो जाएगा, ये भी 11 पे चला जाएगा। सॉरी, आपने पहले 9 लगाया था, तो जितने परसेंट इसकी वैल्यू बढ़ी, अगर उतनी वैल्यू बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली उसके साथ। तो ये होगा कि आप लगा के भूल गए, आज इसकी वैल्यू 10 थी, आपने रादर देन कहा कि ये 9 पे बेच दिया, 10 पे बेच दिया, तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया। तो उससे ये होगा कि लेट सपोज इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, अगले 2 महीने में या अगले चंद दिनों में 15-16 पे चली जाती है, तो आपको ये फर्क ये है कि अगर तो आपका ये स्टॉप लॉस है ना, तो ये बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप की वजह से, ये मतलब उसी परसेंटेज के लिहाज से ऊपर जाता रहेगा। तो आप एक सिक्योर हेवन में भी हैं, और आपका प्रॉफिट या आपका एक जो लॉस था वो भी एक बढ़ रहा है साथ साथ। फॉर एग्जांपल आपने 10 पे खरीदा था और आप एट सम स्टेज उसको 13 पे बेचते हैं, ठीक है, तो आप सिक्योर भी रहे और आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये सबसे बड़ा ट्रेलिंग स्टॉप का है। तो अगर इसके बारे में और मैं कहूंगा कि जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करें तो काइंडली ये जरूर देखें ट्रेलिंग स्टॉप आपको ये फीचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो उसको जरूर यूज करें, ये बड़ा फायदेमंद है। इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, प्लेटफॉर्म पे या कोई इन जनरल
मैंने क्विकली इसको वाइंड अप किया। अभी खैर मेरे पास और भी था कि हम कुछ ऑनलाइन जाके फैक्टर्स भी देख सकते हैं, अगर टाइम है तो हम जा सकते हैं। कुछ जो हमने डिस्कस किए थे अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर, वो हम यहाँ पे देख I सकते have हैं a कुछ कंपनियों question. की। जी जी प्लीज। Why do you suggest this trader, the gyro? मैंने आपको बताया इसकी ना, मेरा ख्याल अगर हम जर्मनी की बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन जो फी है वो सबसे कम है। ठीक है, it is based on Netherlands. ये नीदरलैंड पे जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ ना, कॉफन अगर मैं करूँ तो अगर मैं ये यूनिट करूँ तो मैं इसको ऑर्डर प्लाटसीरन करूँ, सॉरी मुझे यूनिट डालने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर मैं लेट्स सपोज मार्केट से खरीदता हूँ इसके 10 यूनिट ऑर्डर प्लाटसीरन, तो मुझे बताया कि इसकी आपको ट्रांजैक्शन पड़ेगी 2 यूरो, तकरीबन 2 यूरो 2 सेंट। जेट्रा की, ओके। अच्छा, तो जेट्रा फिर ये जर्मन ये फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का कह रहा है, मतलब बोर्ड से जेट्रा, मतलब इट इज लिंक्ड विद ऑल द स्टॉक एग्जैक्टली एक्सचेंजेस ऑपरेटिंग इन द यूरोप। जी बिल्कुल। एग्जैक्टा जो है वो आपका वेन्यू है ना, आपका ट्रेडिंग वेन्यू है, तो ये अक्रॉस द ये फ्रैंकफर्ट बेस्ड ही है, तो या उसके थ्रू ही जाएगा ये। या सो और इसमें जो लैंग्वेज प्योर इंग्लिश में कर सकते हैं, ये जो अच्छा हाँ, फेड कॉफ कॉफ की जगह भी इंग्लिश आ जाए? ये चैलेंज है यहाँ पे कि अगर आप जर्मनी में रजिस्टर्ड हैं तो ये आपको जर्मनी में देगा। ये चैलेंज है, मैंने इसलिए आपको कहा था बी केयरफुल, अगर आप जर्मन में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो। खैर ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, 2-4 लफ्ज ही हैं, मतलब कितने होंगे मैक्सिमम तो टर्मिनोलॉजी। वन थिंग मोर, इसमें डाटा एनालिसिस करने के लिए या पास हिस्ट्री सारी, मतलब आप सही से जिस तरह फॉरेक्स की करते हैं इस तरह इसके ऊपर सारे कुछ अवेलेबल है, ठीक है? इसमें कोई आप खुद के केपीआई बना सकते हैं, ठीक है, मतलब या इसके ऊपर जो ऑलरेडी बिल्ट इन है केपीआई, बंदा एक ही ग्राफ में मतलब 5-6 केपीआई को ले आए, तो उस हिसाब से कोई एनालिसिस करना हो, सो दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, और लाइक वी हैव टू नहीं, डू प्राइवेटली? ज्यादा नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते एनालिसिस के लिए, ठीक है, ना ही आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये हमारे सिर्फ ये है पास कि हुमैरा, राहील एंड एबीडी हैं, अबद आई बिलीव। हुमैरा फॉलोड बाय राहील एंड अबद, प्लीज यू कैन गो अहेड हुमैरा। थैंक यू। नहीं, अगेन कंटिन्यूइंग विद डेजीरो, दो क्वेश्चन थे। एक ये कि इसमें लेवरेजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, लेवरेजिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है। लेवरेजिंग जो होती है नॉर्मली इसमें नहीं ऑप्शन, एटलीस्ट स्टॉक में नहीं है। वो सीएफटीज में हो सकता है, स्टॉक में नहीं है। बट इफ यू आर थिंकिंग टू बी लेवरेज, बी केयरफुल। नहीं, ठीक है, इट्स टू वे सॉर्ट, इट्स टू वे सॉर्ट। एटलीस्ट स्टॉक में नहीं है। ईएफटीज हो सकता है, क्योंकि मैंने ना असल में क्या क्या ऑक्सियन के ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, ईएफटीज हैं, मैंने कभी देखे नहीं है। ईएफटीज में हो सकती हैं या आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्टॉक में नहीं है। ओके, गुड। दूसरा एक अगर मुझे अपना स्टेटस का पता करना हो कि मेरी टोटल मैंने डिजीरो में कितने पैसे डाले और अब मेरा कितना अकाउंट में पैसे हैं आफ्टर, तो बिल्कुल, वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? वो ये मैंने इसको हाइड कर दिया इस वक्त ड्यू टू प्राइवेसी रीजन, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा बता रहा होता है कि आपने कितने इन्वेस्ट किए, आपके पास कितने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं, और आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है, वो भी आपको यहाँ पे आ रहा होता है अभी तक। प्रॉफिट या लॉस किस के आप टर्म दोनों चीजें अगर ग्रीन होगा तो समझ ले प्रॉफिट है, रेड होगा तो समझ ओके, जो गिजाम्ट आपका आ रहा होता है। टोटल। हाँ, इंडिविजुअल अगर आपने देखना तो उस पर भी जा सकते हैं। असल में वो प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं जा नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पे अगर अपने प्रोफाइल में जाएं तो आपको जितने भी आपके ये, जैसे कि मैंने ये है ना, तो आपको इसमें सारे आ जाएंगे। आपने कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, आपका कितना मार्जिन है, प्लस माइनस, तो आपका सारा वो उसमें आ जाएगा। वो सारी डिटेल आपको मिल जाती है इंडिविजुअली भी और इन एग्जाम्पल भी। ओके, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि वहाँ एक दो टर्म्स होती हैं, जैसे कॉन्टो गुड हार्मन है या पोर्टफोलियो है या फिनांस रामन है, तो ये सारी वैल्यूज या जीएमएफ वो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही होती है, तो किसी भी पॉइंट पे मैं ये नहीं अंदाजा कर पाती कि अब मेरा ओवरऑल गेन कितना हो गया है, कितने परसेंट हो गया है। मैं पोर्टफोलियो को चेक करूँ या कॉन्टो गुड हार्मन को चेक करूँ? नहीं, कॉन्टो गुड हार्मन तो वो है जो आपके पास अमाउंट पड़ी है, मतलब जो आप, अच्छा कॉन्टो गुड हार्मन में दो चीजें हैं, उसमें आ जाएगा आपका, एक आपकी जो स्पेयर अमाउंट पड़ी है जो आपने इन्वेस्ट नहीं की, और दूसरा आपकी एक्चुअल जो वर्थ है स्टॉक की जो आपने खरीदी हुई है, ठीक है? तो वो फॉर एग्जांपल आपने इसमें ट्रांसफर किए थे 5000 यूरो, और अगर आपको वो कह रहा है कि गुड हार्मन आपका 6000 यूरो है, तो इसका मतलब है कि 1000 आपका डेल्टा है, ठीक है?
उसके अलावा आपको खैर इसमें D0 में एटलीस्ट आपको यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। यहाँ पे ये वो जो मैंने इसको अनहाइड कर दिए, हाइड कर दिए, यहाँ पे आपको क्लियरली आ रहा होगा प्लस माइनस, तो आपको क्लियरली फिगर होगा कि आपने जब से स्टार्ट किया है आप प्लस में है या माइनस में है। ओके, दैट्स एग्जैक्ट इजी। फिगर आप सीधा आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपने अभी तक जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसमें आप कहाँ पे खड़े हैं या खड़ी हैं। ठीक है, थैंक यू। जी राहिल, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने ये जो ट्रेलिंग एंड पे एक्सप्लेन किया, ये राइट साइड वाले पार्टे में, ये मुझे क्लियर नहीं हुई। आपने काइंडली आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका जी पर्पस बिल्कुल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल वो आपने बिल्कुल 5% और 10% रख के किया था। थैंक अच्छा यू। चलें, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शेयर खरीदे, एक शेयर की वैल्यू थी लेट्स सपोज 100, हम परसेंटेज के लिहाज से इजी कर देते हैं ताकि इजी हो जाए, ठीक है जी। 100 डॉलर या यूरो में आपने एक शेयर खरीदे मार्केट में, और आप कहते हैं यार मुझे रिस्क है कि जब इसकी प्राइस आ जाए 92 तो ये सेल हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप में आप कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप जब 92 इसकी आए तो सेल हो जाए, और साथ आप 5% उसका वो स्टेप भी लगा देते हैं 5%। अब होगा ये, अगर तो मार्केट नेगेटिव हुई पीछे की तरफ आई, सो उसकी करंट प्राइस थी जहां पे खरीदे, अगर मार्केट नेगेटिव आती है और 92 तक पहुंचती है समहाउ, तो आपका सेल हो जाएगा 92 पे, दैट्स ऑल, ठीक है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसा कि स्टॉप लॉस में होता है। ऑन द अदर वे, अगर मार्केट नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव जाना शुरू हो जाती है और वो 100 की बजाय आपका प्राइस हो जाता है 105, यानी कि 5% आपका बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, वो जो 5% बढ़ गया ना, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप का इस बंदे ने कहा था कि 5% हो तो ट्रेलिंग स्टॉप भी इसका 5% बढ़ा दो, यानी कि अब आपने 92 लगाया था ट्रेलिंग स्टॉप, अब वो 5% उसमें ऐड कर देगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा 96 समथिंग, लेट्स सपोज 97। अच्छा, प्राइस कितनी चलेगी 105 पे, और आपका जो ट्रेलिंग या आपका जो सेल करने की वैल्यू थी वो 92 से बढ़ के 97 पे चली गई, ठीक है। अच्छा, अगले दिन मार्केट फिर नेगेटिव आई, ठीक है जी, और मार्केट प्राइस नीचे गई और मार्केट प्राइस 95 पे चली गई, लेकिन आपके सेल जो थे वो 97 पे हो जाएंगे, वो आपके 92 पे सेल नहीं होंगे, वो आपके 97 पे सेल हो सकता है मार्केट 90 पे चली जाए, लेकिन आपके सेल किस पे होंगे, वो 97 पे सेल होंगे रादर देन 92। इसी तरह अगर आप और पॉजिटिव सोचें, लेट्स सपोज अगले दिन मार्केट और पॉजिटिव जाती है और शेयर प्राइस 110 पे चले जाते हैं, ठीक है जी, 10% बढ़ गए, तो आपकी जो जो सेल करने की वैल्यू थी वो 100 एंड समथिंग हो जाएगी, 102 लेट्स सपोज हो जाएगी। तो मार्केट जब नेगेटिव आएगी तो वो आपने सेट इनिशियली 92 की थी, लेकिन वो वैल्यू इसी तरह आपके ट्रेलिंग स्टॉप में बढ़ती जाती है साथ साथ उसी परसेंटेज के लिहाज से जब मार्केट पॉजिटिव जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है और फिर एक नेगेटिव आई है तो आप वो मार्जिन ले लेते हैं, रादर देन कि आप 92 पे सेट, फॉर एग्जांपल मार्केट गई 110 पे गई, और लेकिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप यूज नहीं किया, आपने स्टॉप लूज यूज किया, तो वो 92 ही आपका सेल नहीं होंगे, लेकिन मार्केट ऊपर गई 110 पे और वापस आई 90 पे आ गई वापस, तो वो 92 पे आपका सेल होगा, तो आपका जो लॉस है ना वो उधर ही फिक्स है। तो स्टॉप लॉस की निस्बत ट्रेलिंग स्टॉप इज बेटर ऑप्शन, कि नेगेटिव डायरेक्शन में वो सेम काम करता है जैसे स्टॉप लॉस, लेकिन प्लस डायरेक्शन में वो आपका साथ साथ विंडोज बढ़ाता जाता है, तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? और हाँ जी, मुझे काफी क्लियर हो गई है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब 96% पे वो करेगा तो वो 5% इसका ऐड करेगा इसमें, जी मतलब एग्जैक्टली, मेरी बेस वैल्यू 96 हो जाएगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल जी बहुत सिंपल और आपने क्लियर वर्ड्स में आंसर कर दिया, थैंक यू। तो परसेंटेज आपकी बड़ी क्रूशियल होती है, आपने कितने परसेंट यूज करना है। नॉर्मली लोग 5% यूज करते हैं, 6%, बी केयरफुल ही है। अगर आप बहुत थोड़ा 2%, क्योंकि आप समझते हैं कि अच्छा 2% मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं 2%, लेकिन अगर मार्केट 2% नीचे भी आएगी तो फॉरनली रिएक्ट भी हो जाएगा, तो ये बी केयरफुल अबाउट चूजिंग हाउ मच परसेंट। आप इस पे कैलकुलेशन करें कि आपने कितने चूज करना है, 4%, 5%, 6%। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट आप खुद ही खैर इसको एस्टिमेट कर लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली 4%, 5% इज अ गुड नंबर, गुड फिगर। जी, और कोई क्वेश्चन? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट के क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा सा शॉर्ट करें, और किसी के जिसके भी मजीद क्वेश्चंस हो तो अब्दुल फहीम साहब इज वेरी काइंड कि वो कह रहे थे कि आप लोग हमें लिख के भेज दीजिएगा और हम आपको जरूर आंसर कर देंगे। आई वुड लाइक टू अनम्यूट नाउ मिस्टर आबिद। Thank you. Okay, the first thing is just to suggest there's another startup in Berlin called Trade Republic. So they also charge like €1 fix for any transaction when you sell or buy. So that's also a good option, and it's in English, so that's also really helpful. But my question is that
how does this taxation work, Fahim, when you compare to dividends and this capital gain? Is it like same fixed 25%, or do you have different parameters when we do It's a fix. taxation at the end? It's fixed. Thank you. क्या बताया आपने प्लेटफॉर्म का? मैं देखूंगा उसको. क्या नाम था? It's called Trade Republic. It's a startup in Berlin. Trade Republic. Okay. Yeah. Thanks. I will check it. अच्छा जी. I think we are done. Okay. Actually आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ. Actually time हमारा हम already 50 minute up हैं. तो ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास 3 हाथ लोगों ने खड़े किए हैं. अगर वो अपना सवाल छोटा करके पूछें और फहीम साहब आप भी जरा प्रिसाइजली जवाब दीजिए. और बाकी लोग जो है हम थैंक यू की पोस्ट डालेंगे. They can record their feedback there, and also they can ask questions. Also they can send their question on our inboxes. जी. Next हमारे पास अली खालिक है. Please you can unmute yourself. But I think Abdul Fahim Saab is yet to answer the Mr. Awad's question. Or? जी वो मैंने दे दिया. No, he already answered. Yeah, it's like fixed 25% tax, which I wasn't sure because I guess it's only in Germany it's like the same, but in USA it works different. So on dividends, do you have to pay a different kind of tax? Yeah. And on capital gain, it's a different percentage. But thank you, Fahim. Yep, you're welcome. अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन बड़ा बिगनिंग लेवल का है कि ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. कि आपने बोला कि आपका एक बैंक अकाउंट हो, टैक्स अकाउंट नंबर हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. इसका मतलब है जो भी इनकम होगी, हमारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हमारा पर्सनल होगा. डिक्लेरेशन पहला क्वेश्चन ये है कि एनुअली आपने करनी है. जब आपने वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर आपने पे करना है टैक्स वगैरह. जो भी आपने बोला है. नॉर्मली जो डिविडेंड्स पे होता है ना, वो डिविडेंड्स पे होता है ना नॉर्मली, वो आई थिंक टैक्स डिडक्शन हो जाती है. वो ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन हो. आई एम नॉट श्योर, इट डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म. नहीं, मेरा ये क्वेश्चन जरा प्रैक्टिकल नेचर का है कि अगर मैं बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आज को मेरा टैक्स नंबर भी है, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर भी है, तो मैंने ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया अपनी, ठीक है. और फर्ज करें मुझे 6-7 महीनों बाद कुछ प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है. तो उसकी डिक्लेरेशन जो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है, जो मैंने जर्मन गवर्नमेंट को देना है, क्या कोई किसी भी यूरोपियन कंट्री में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बैठ के, तो वो मैंने एनुअल देना है या उसका सारा कुछ आप मुझे बता दें. मैं इधर का अपना इटली में खुद ही कर लूंगा. जी, नॉर्मली जर्मनी में तो एटलीस्ट आपको जब एनुअल आप टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें आप डिक्लेयर कर देते हैं. इसका मतलब है कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसका तो वो सिस्टम अलग चलेगा और ये सिस्टम उसका अलग चलेगा. नहीं, जब आप टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें ये भी एक ऑप्शन होती है कि एक्स्ट्रा इनकम, कि अगर आपकी कोई और रिसोर्सेज से इनकम हुई तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से ये इनकम हुई है, ठीक है. अच्छा. तो आजकल तो खैर मैं खुद अपनी टैक्स डिक्लेरेशन करता हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे इसलिए आइडिया है कि उसमें आप सेपरेट एक कॉलम होता है, उसमें आप मेंशन कर दें तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन अगर आपका कोई लॉयर है तो आप उसको बताएं, वो खुद मतलब अकाउंटेंट वगैरह हमें कोई हेल्प करेंगे इसकी. जी, जो टैक्स को डील करते हैं वो, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो टैक्स को हैंडल करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हैं ये कितने रिलायबल हैं? फर्ज करें जो मैं एक फूल से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कभी ऐसा चांस हुआ है कि आपने कोई बिड पे लगा दिया अपना, सॉरी बेचने के लिए लगा दिया या खरीदने के लिए लगा लिया, कभी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो फुलफिल नहीं हुई? नहीं, डजीरो पे मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है. जो बड़े नाम हैं वो ठीक है. अब जैसे उन्होंने एक रेफर किया स्टार्टअप, अब स्टार्टअप के लिए हमें थोड़ा सा ये भी एक नेगेटिव साइड ये होती है कि वहाँ पे हमें केयरफुल होना पड़ता है कि वो कितने स्टेबल हैं. तो वहाँ पे ठीक है, एडवांटेजेस भी होते हैं, बट अगर आप जो रिलायबल हैं जैसे कि डजीरो मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, थैंक यू जी. वेलकम. फहीम साहब, हमारे पास एक और ऑप्शन भी बड़ी अच्छी है. आई विल जस्ट ओपन द चैट बॉक्स. Okay, they can just post all their questions there. All right, and we will go for, let's say, 5 more minutes. They can all post their question and we can copy that all questions and we can send you, then you can answer them. So I will just open the chat box while by the time I'll just unmute Kashif. He can ask. जी, अस्सलाम वालेकुम. काशिफ भैया, असल में मेरा क्वेश्चन था कि एक तो 26% आपने टैक्सेशन बताई थी और मैरिड के लिए आपने कहा था €1600. इज इट पर एनम?
या 1600 यूरो पर, ओके। अगर इतना आपने पर एनम कमाया है तो उस पर कोई टैक्स आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज ये थी कि यूएस स्टॉक मार्केट का मैं देख रहा था, उसमें टैक्सेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप 1 ईयर से पहले अपने शेयर्स को सेल करते हैं तो उस पर टैक्सेशन डिफरेंट होती है, और अगर 1 साल के बाद में, यानी कि 1 साल गुजर जाता है आपको शेयर्स खरीदे उसके बाद सेल करते हैं तो टैक्सेशन डिफरेंट है। इज इट द सेम हियर इन जर्मनी? और जी, जर्मनी में भी ऐसा ही है, उसको कहते हैं आप लॉन्ग टर्म। जर्मनी में मेरा ख्याल लिमिट थोड़ी ज्यादा है, मुझे इस पे एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल उस पे 3 साल है। आई एम नॉट श्योर 2 ईयर और 3 इयर्स है, तो उस पे टैक्स की कुछ और रेट्स होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगी है। वो लॉन्ग टर्म और एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म डिफरेंट होता है। जी, यहाँ भी अच्छा, डिफरेंट तो रेट्स हैं, लेकिन मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए वो टैक्स वाले ज्यादा बता सकते हैं, बट या यहाँ भी डिफरेंट है। ओके, और ये जो 26% आपने बताया ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, थैंक्स। वेलकम। अरसलान है हमारे पास। अरसलान, आप अनम्यूट कर सकते हैं by the time we are getting some questions from the chat box as well. Thank you. So first little question, then I have a second question. First is like if someone is already having a job, and on the other hand, for the second source of income, he starts buying and selling a stock. So in this scenario, the tax clause will change when you will go for the tax declaration at the end of the year. नहीं, आपकी जो वो टैक्स है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो आपकी डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, और ये टैक्स फिक्स है इसकी, मैंने जैसे बताया 26% समथिंग, तो वो आपकी क्लास का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सेकेंडली ये जो प्लेटफॉर्म है डिजायरो, लाइक इट इज नॉट लुकिंग वेरी कंपैटिबल विद द डे ट्रेडिंग. So is there any other platform that you suggest is better, that better fits for the day trading? नहीं, मैं चूंकि मैं भी डे ट्रेडर नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, इसलिए सॉरी मैं उस पे आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। Okay, thank you. जी, वेलकम। मेरा एक सवाल है, कैन आई? जी जी, श्योर। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ जर्मनी में, एंड अभी तक मुझे ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि वाकई हम स्टॉक में कर सकते हैं ट्रेडिंग या नहीं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि फ्रीलांसिंग वगैरह तो यहाँ अलाउ नहीं है, आपको पता है। जी जी। और बिजनेस करना भी स्टूडेंट को शायद अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो इसका कुछ। जी, आप स्टॉक कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि बैंक में पैसे रख सकते हैं, उसके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, इसलिए ये जॉब नहीं है कोई ना ये फ्रीलांसिंग है, इट्स इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, किसी ने पूछा जी, is there a reason why one platform has 2 euro transaction cost and other has 5 to 7? It is depends upon the speed of servers, that's carrier etc. नहीं जी, ये ट्रांजैक्शन फीस पे तो नहीं डिपेंड करती, डिपेंड करता है उनका अपना बिजनेस मॉडल क्या है। कईयों के एक्सपेंस ज़्यादा हैं या कई ज़्यादा फीचर दे रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर हैं। स्पीड का मेरा ख्याल इसमें कोई इतना बड़ा लिंक नहीं है, और वैसे भी आप जितने ज़्यादा ग्रो करते हैं, आपके जितने ज़्यादा कस्टमर होते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल का आप एडवांटेज लेते हैं, फिर आपकी कॉस्ट उतनी कम होती जाती है। तो मे बी इकोनॉमी ऑफ स्केल का हो, तो ये उनका बिजनेस डिफरेंट मॉडल है, तो डिपेंड करता है आपको कौन से फीचर दे रहे हैं। मे बी कुछ लोग आपको ज़्यादा फीचर दे रहे हो तो इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, किसी ने और मासूमाना क्वेश्चन है, अगर आप जी उसका जितने मर्जी मासूमाना क्वेश्चन पूछें जी, कोई बात नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, पहले ये बात है कि ये जो से प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो ये कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट करते हैं आपके अकाउंट्स में, यानी कि आप कोई सेल करते हैं या बाय करते हैं तो ट्रांजैक्शन कितनी देर में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है? अगर तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अगर तो आप रियल मार्केट से करें तो विद इन सेकंड्स आपको आ जाता है। अच्छा, तो अगर आपने ये बाय एंड सेल वगैरह जो आपने वो स्टॉप की कंडीशन लगाई हुई थी, तो वो उसी रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाती है? जी, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो फिर हो जाएगा उसी टाइम। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो तो जैसे ये आप देखें मेरे ओपन ऑर्डर जो मेरे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं ना हुए, क्योंकि मैंने इन पे भी कुछ स्लॉप ट्रेल्स लगाई हुई हैं। ठीक है जी, तो लेकिन जब एग्जीक्यूट हो जाए तो आप विद इन सेकंड्स आपको नजर आ जाता है। ओके, थैंक यू जी। एक और सवाल है, इन द जर्मनी, असल में सवाल है जी, इन द जर्मनी आई हैव अ बैंक अकाउंट इन पोस्ट बैंक, इफ आई वांट टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट डू आई हैव टू इन्फॉर्म द पोस्ट बैंक और जस्ट कैन डायरेक्टली ओपन एन अकाउंट विद द जीरो विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी थर्ड पार्टी? जी, आप जीरो में डायरेक्ट खोल सकते हैं, आपको किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है।
बस आपको यहाँ पे पैसे सुपरवाइज करने पड़ते हैं, ट्रांसफर करने पड़ते हैं D0 में, ठीक है जी। तो आपको किसी बैंक से इजाजत लेने की या करने की जरूरत नहीं है। फहीम साहब, आखिरी जो है हमारे पास वाजिद एहसान है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। ये जितने भी चैट में सवाल हैं ये हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और वो आपको हम अलग से भेज देंगे। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। We are too late now. Okay, Wajid, you can unmute yourself. Please ask your question. Thanks, Wajid here. अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक कमेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया है पोजीशन एंड वो मैं सेल आउट नहीं करता फॉर द 1 ईयर, जी, तो क्या और उसकी पोजीशन की वैल्यू राइज हो जाती है, तो क्या मुझे किस तरह मुझे बेसिकली उसको डिक्लेयर करनी है टैक्स में, और नेक्स्ट ईयर वो डाउन हो जाती है तो अच्छा, आप टैक्स सिर्फ तब देते हैं जब आप उसको सेल करेंगे। अब आप उसको होल्ड करेंगे तो आपको टैक्स नहीं, क्योंकि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया। टैक्स आपको सिर्फ तब देना पड़ेगा जब आपने सेल कर दिया कोई चीज और आपको उसका प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है? सही, होल्ड करने पे नहीं है कोई टैक्स। ठीक है। और रिगार्डिंग एक तुमने क्वेश्चन पूछा था और प्लेटफॉर्म के बारे में, पर्सनली मैंने स्टार्ट किया कुछ अर्सा पहले ही, वो है +500, so there is no transaction fees in that one, but the account is already leveraged, so ये be careful जो leverage में नहीं यूज करना चाहते। but अगर if you will open a position like for more than 1 day, so they will charge some fees which is called interest. but अगर आप डे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो for sure they will not charge anything and the transaction there is no transaction cost. but there is one more which is called eToro. I think this is quite good, so I'm also planning to move to this one. अच्छा, eToro का मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं। eToro जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उसमें लोग अब लोगों को कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है वो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो आप उसका प्रोफाइल कॉपी कर ले तो आपके ऑटोमेटिकली उसको आप फॉलो करेंगे। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वी हैव नो आइडिया कि एक ट्रेडर है वो क्या खरीद रहा है। मे भी अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जो बियर का काम करते हों या जो ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें मैं पसंद नहीं करता, तो वो मेरे लिए जाना जरूरी है। मतलब मैं नहीं जान सकूंगा कि वो बंदा किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये डिसएडवांटेज है। That's true, but you don't have to really follow anyone if you think you can do it on your own. जी, eToro खुद भी कर सकते हैं, exactly. But there is no transaction fees in that account as well, so I think that perspective is. जी, मेरे पास भी eToro का अकाउंट है लेकिन मैंने कभी अभी उसको यूज नहीं किया। अच्छा, I was also planning to move. Let's see. Okay. Okay. Thanks. जी, we are done or still we have any question? We are more than done, Fahim साहब. We can have another session later on. तो अभी आप शुक्रिया अदा कीजिए, देन कोमल क्लोजिंग रिमार्क्स दे देंगे। जी चलें जी, मेरी तरफ से सारे पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। मुझे भी बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला। जरूरी नहीं कि मैंने आपको ही सिखाया। I'm on the positive side. I'm always there to help you guys. If you have any question, please write us. We will reply your question and please provide the feedback. अगर कोई shortcoming रह गई है, अगर कुछ आप समझते हैं बेहतर हो सकता था या कर सकते थे, तो हम वो भी definitely करेंगे। मैं अब क्लोज करता हूँ और मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस कोमल को, वो अपने एंड रिमार्क्स देंगे। चलिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। Thank you so very much, Abdul Fahim साहब. It was such an interesting session. मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिला और आपने इतना टाइम लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला और इस सब को कामयाब बनाया। होपफुली कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड डिजिटल डोमेस्टिक इज़ देयर। कोई भी आना चाहे, कोई भी किसी के साथ कोई बात शेयर करना चाहे, स्किल शेयर करना चाहे, वी विल फुली सपोर्ट यू गाइस। सलामत रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।